सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो लास्ट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्कस की थी। इस सेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली एनाटॉमिकल पोर्शन और जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड एनाटॉमिकल पोर्शन है वही यहाँ पे इंक्लूड किया है, वो भी समराइज इसमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। नेक्स्ट लेक्चर में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो डिस्क्राइब करेंगे। सिस्टम बहुत बड़ी है, एक लेक्चर में होना मुश्किल था, इसलिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से वहां से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है उसमें काम में आते हैं, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स काम में आते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में जो लेयर्स है वो काम में आती है। तो उस हिसाब से सिर्फ हमने यहाँ पे समराइज किया है, स्टार्टिंग विद एनाटॉमिकल पोर्शन फर्स्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे सिनोनिम्स हम यूज करते हैं आयुर्वेद में भी। अन्नवह, अन्न मार्ग, पाचन संस्थान, महास्त्रोत करके एक अलग से दिया है। महास्त्रोत इट्स जस्ट सिमिलर टू महत। महत मीन्स बड़ा। स्त्रोत इन आयुर्वेद इट इज कॉल्ड एज एन चैनल। जो सबसे बड़ा चैनल बॉडी में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर। देन अंतःकोष्ठः means कोष्ठा it is the cavity present within the body, और अंत internally means जो बॉडी के इंटरनल कैविटीज में जो ऑर्गन प्रेजेंट है उससे रिलेटेड जो सिस्टम है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एन डाइजेस्टिव, called as an GIT tract, or it is called as an alimentary canal or gastrointestinal tract. Gastro, it is related with gastrum, that is the stomach, intestines. They are having the different parts: small intestine, large intestine. Near about the total length of an digestive system, starting with the mouth up to the anal canal, that is the anal opening, it is nearly a 30 feet. Basically, the most सबसे बड़ा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन 1.6 रिलेटेड जो है वो वहाँ पे कॉइलिंग्स होते हैं 6 मीटर से रिलेटेड वो पार्ट है। जस्ट गो वन बाय वन। Just digestive system divided into mouth, esophagus, stomach, duodenum. Then in small intestine they're having the three structure: duodenum, jejunum, and the ileum. Large intestine starting with cecum and end with an anus. Then functions, basically the functions of the digestive system starting from the mastication, it's related with the teeth. Then deglutition, it's related with the soft palate. Then complete digestion process, it just occurs into the stomach, then duodenum. Then absorption is just related with a small the part of an jejunum, ileum, along with the parts of the digestive system. And excretion is lastly when the waste product which is not required for the nourishment of the body, it is excreted from the anal canal. So these are the primary functions, and they have different physiology involved in these all structures. Just go one by one. जो हमें पता है वो हम फोकस नहीं करेंगे, जो नहीं पता पर एज अ एनाटॉमी पता होना चाहिए वहाँ पे हम फोकस करेंगे। स्टार्टिंग विद द माउथ, that is called as an oral cavity. It consists of lip, gums, teeth, palate, tongue, and the pharynx. Pharynx basically it is not part of a digestive system. It is a part related with the respiratory system. But when they are having a cavity, that is oral cavity, it just open at posterior aspect of the oropharynx. So we are here included in the portion of the mouth that is the pharynx. We are not discussing pharynx over here. We are discussing it in the respiratory system. Starting with the first one, that is the mouth cavity. यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस है हम जो हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में इसको यूज करते हैं दैट इज द माउथ कैविटी। अगर ये
चीज हम डिस्क्राइब करने जाएंगे तो बेसिकली इन माउथ वी हैव इन टू कैविटीज. So first one, that is the vestibule, called as a vestibule, and second one, that is called as a mouth cavity proper. Means अगर हमने अभी बोला कि mouth cavity क्या है तो हम मुंह खोलेंगे और this is the cavity. So basically this cavity is divided into two segments. अगर हम मुंह बंद करके रखेंगे तो जो दांत के आगे का पोर्शन है, आगे anteriorly जो पोर्शन आता है, it is also a cavity, and the portion which is just posterior to teeth, it is also cavity. But we are collectively called as a mouth cavity. But anatomically, it is divided into two segments. A first one, that is the vestibule. It is just in front of the teeth and behind the lips. Then proper mouth cavity, anatomically, it is just behind. So these are the basic difference. Starting with the first, that is the vestibule. अब जैसे मैंने बोला कि अगर हम मुंह बंद करके रखेंगे तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर टीथ बंद है तो एंटीरियरली लिप्स हैं, एक्सटर्नली वी हैविंग इट थिक. तो ये पूरी कैविटी जो होगी दैट इज कॉल्ड एज एन वेस्टिब्यूल. देन जो नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज, जैसे यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, दिस इज द टीथ, दिस इज द टीथ. अगर ये बंद हो गया तो टीथ के बाहर यहाँ पे एक कैविटी है और यहाँ पे एक कैविटी है. तो बेसिकली दिस इज द वेस्टिब्यूल. एंड सेकंड वन, दैट इज द प्रॉपर माउथ कैविटी, जिसे हम, ये जो होती है दैट इज प्रॉपर माउथ कैविटी. अब बेसिकली ये दोनों कैविटी में कनेक्शन डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं रहता. एंटीरियर टू पोस्टीरियर वी हैविंग द गम्स एंड द टीथ, बट एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट यहाँ पे जब मोलर खत्म होते हैं, प्रीमोलर मोलर के बाद ये जो पोर्शन है यहाँ पे वेस्टिब्यूल और क्या ये प्रॉपर ओरल कैविटी कनेक्टेड रहती है. तो दिस इज द ओरल कैविटी. लिप्स, ज्यादा कुछ इसके बारे में हम बोलेंगे नहीं. जस्ट एंगल ऑफ माउथ, this portion where upper and the lower lip where fuses is called as an angle of mouth. Then frenulum of the lips, जब हम लिप ऊपर करते हैं, this structure ये हम यहाँ पे palpate कर सकते हैं. This is called as an frenulum of the lip. This is another structure related with lips. Then philtrum, philtrum ये जो चीज है, this portion, ये जो नोज के सेप्टम के नीचे आप जो डिप्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज एन फिल्ट्रम. बेसिकली ये एडेप्टेशन के कारण इवॉल्व हुई चीज है. जैसे आप लोअर मैमल्स में देखोगे, जैसे कुत्तों में वगैरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिल्ट्रम होता है वो डिप नॉच होता है. इट्स फॉर द सेंस जो रहता है कुत्तों में, सुनने की शक्ति जो रहती है वहाँ के सेंसर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. लेकिन एज ए एडेप्टेशन वी डोंट हैव दिस सेंसेस, पर यहाँ पे उसका परसिस्टेंट मार्क अभी भी मिलता है. तो दिस इज कॉल्ड एज एन फिल्ट्रम. So this is also structure related with lip. In chicks, chicks में जो important होता है that is related with the submucosa and molar glands which are present over the chicks, जो starting के digestive process से काम में आते हैं. Then buccal glands there are, जो buccal muscle में present होती है. Actually यहाँ पे 6 layers होती है. सबसे पहले skin, फिर buccal fat, फिर बकोफेलेंजियल फेशिया, फिर बक्सिनेटा, देन म्यूकोसा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ये पूरी लेयर्स जो होती है मसल्स को कवर करती है, स्किन से स्टार्ट होती है. तो बेसिकली दे हैविंग द म्यूकोसा और सबम्यूकोसल ग्लैंड एंड बक्कल ग्लैंड्स व्हिच आर जस्ट यूजफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. वो उनको मॉइस्चर देता है. तो ये दूसरी एक चीज दैट इज नेसोलैबियल सल्कस. ये एनाटॉमी के लिए बहुत बार हमें दिखते हैं. दिस इज नेसोलैबियल सल्कस. जैसे यंग एज में हमें ये नहीं मिलेंगी, लेकिन एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये जो डिप्रेशन यहाँ पे हमें एनाटॉमिकली दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज नेसोलैबियल सल्कस. जैसे स्किन की टाइटनिंग कम होती जाती है, एज प्रोग्रेस होती है, तो ये दिखना स्टार्ट होता है. तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर. सो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर रिलेटेड विद लिप्स एंड नोज, नेसोलैबियल सल्कस. और ये प्रेजेंट होता है बेसिकली चिक्स के कारण. यहाँ पे जो स्किन होती है, बकल ग्लैंड होता है, वो उसके कारण ये एज प्रोग्रेस होने के कारण परसिस्टेंटली दिखता है. प्रॉपर ओरल कैविटी, ये मैंने बताया कि टीथ के अंदर है. रूफ जो होता है इट इज फॉर्म बाय द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. अगर हम टंग से ऊपर टच करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये दिखेगा एंटीरियर पोर्शन है वो हार्ड दिखता है. इट इज रिलेटेड विद bones that is called as a hard palate. At the posterior segment we having the soft palate. Lower posteriorly तो टंग है,
और यहाँ पे एक चीज ये देखने जैसे है कि यहाँ पे डिवीजन होता है तो पोस्टेरियरली उन्होंने टंग कहा है, एंटीरियरली दे हैविंग सबलिंगुअल रीजन, सबलिंगुअल, लिंगुला इट्स रिलेटेड विद टंग, सब मींस नीचे, तो बेसिकली एंटीरियरली टंग मूवेबल होती है, इट डज नॉट रेस्ट ऑन अ फ्लोर, पोस्टेरियरली इट्स फिक्सली अटैच्ड। अब ये जब हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं तो कभी भी खाने के साथ या पीने के साथ टंग हम डिल्यूट नहीं करते क्योंकि वो फिक्स अटैच है एट पोस्टीरियर सेगमेंट, तो वहां पे पोस्टीरियरली वो अटैच होता है ओरोफेरेंस के साथ बाउंडेड बाय सुपीरियर सॉफ्ट पैलेट इंफीरियर टंग एंड बोथ साइड ऑफ द पैलेटोग्लॉसल आर्चेस। अगर आप कभी आपको टॉन्सिल्स की तकलीफ हुई होगी तो आपने कभी डॉक्टर के पास से जाने के बाद आईने में मुंह खोल के देखा होगा तो वहां पे टॉन्सिल्स जिस चीज में एम्बेडेड होते हैं तो वो जो कंटेंट स्ट्रक्चर है प्रेजेंटली एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट that is called as an palatoglossal arches. Glossal again it is related with tongue. Palato means a palate, ठीक है, तो पैलेट से लेके टंग तक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एन पैलेटोग्लॉसल आर्चेस एंड विद इन टू पैलेटोग्लॉसल आर्चेस वहां पे दो आर्चेस होते हैं एक ही साइड में, उसके बीच में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट टॉन्सिल्स इज कॉल्ड एज एन पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो बहुत बार टॉन्सिलाइटिस की शिकायत वगैरह हम बोलते हैं यहाँ पे हाथ रख के भी हम उसको पाल्पेट कर सकते हैं अगर स्वेल हुआ होगा तो दैट इज आल्सो रिलेटेड विद ओरल कैविटी। देन अगेन ओरल कैविटी में क्या चीजें हमें दिखती है तो फ्रेन्युलम से लिप फ्रेन्युलम हमने देखा, तो सेम अगर टंग हम पोस्टीरियरली पोस्टेड करेंगे तो वहां पे भी फ्रेन्युलम का टंग हमें सॉरी टंग का फ्रेन्युलम हमें दिखेगा just side to frenulum of the tongue we're having sublingual papilla and just side to the sublingual papilla that is having sublingual fold। अब बेसिकली अगेन सबलिंगुअल पैपुला वहां पे सिक्रेशंस लिए काम में आती है। सबलिंगुअल फोल्ड जो है वो बेसिकली वो वेन सप्लाई करती है टंग को, वो उसकी पोस्टेरियरली प्रेजेंट होती है तो वो फोल्ड भी हमें कैविटी में मिलेंगे। देन गम्स, सॉफ्ट टिश्यू है एनोल ऑफ द एलोरल प्रोसेस एंड द लोअर जॉ, जो टीथ के नीचे जो पोर्शन होता है दैट इज द गम। अगेन इट हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट द superior part it is the free and attached part that is the downward and it is attached with jaw, maxilla को attach होता है at the superior segment and mandible को attach होता है at lower segment। composition of dense fibrous tissue continues with the peristome of the lining, जो स्किन है वहां पे वो डायरेक्टली पेरिस्टोमियम, जो पेरिस्टोमियम मींस आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज एन पेरियोस्टियम, ठीक है, तो पेरियोस्टोमियम को वो डायरेक्टली अटैच होती है बाकी जैसे जगह जैसे स्किन है हाथ की स्किन है तो उसके नीचे मसल्स है और मसल अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पे गम्स ये डायरेक्टली पेरियोस्टोमियम को अटैच होती है, इसलिए कभी ब्रश करते समय अगर गलती से भी थोड़ा सा हमने रफली कर लिया तो वहाँ पे डायरेक्टली ब्लीडिंग होती है। बहुत बार यहाँ पे रहते हैं सेंसिटिवाइजेशन होता है, जिंजिविटिस इन्फ्लेमेशन होता है, इसके कारण भी वो रेड होता है, तो ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम ओरल कैविटी में हमें दिखता है। देन नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें ओरल कैविटी में दिखता है डाइजेस्टिव प्रोसेस के जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं दैट इज द टीथ। हैविंग टू टाइप ऑफ टीथ, रेसिडुअल टीथ एंड द परमानेंट टीथ, जिसको हम दूध के दांत वगैरह बोलते हैं, बच्चों में रहते हैं दैट 20 इन नंबर्स एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग परमानेंट टीथ दैट 32 इन नंबर्स। तो 20 जो टीथ है दे आर डिवाइडेड इनटू incisors, one canine and two molar। तो ये पांच हो रहे हैं एट लोअर सेगमेंट राइट साइड पांच, लेफ्ट साइड पांच, अपर सेगमेंट राइट साइड पांच और लेफ्ट साइड पांच, तो ऐसे टोटल मिला के हैविंग 20 टीथ्स एंड परमानेंट टीथ्स। यहाँ पे सिर्फ दो प्रीमोलर ऐड हो रहे हैं दैट 33 नंबर्स, देन इंसिजर, वन कैनाइन एंड थ्री मोलर्स। रेसिडुअल में सिर्फ वन मोलर। तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर, टीथ कैसे प्रेजेंट होते हैं। These are the molars at last, then premolars, then canines, then incisor। स्टार्टिंग में सबसे पहले दो इंसिजर है तो यहाँ पे भी ये दो इंसिजर आएंगे, then canines, then premolars and the molars। और ये जो पोर्शन है जो हार्ट है दिस इज कॉल्ड एज एन पैलेट, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कौन सी किस काम में आते हैं, तो स्टार्टिंग में इंसिजर, ये जो है
starting to do, that is incisor. It's related with meant for the cutting. Then cutting, then canines, it's folding and tearing. इसलिए ये जो कार्निवल्स होते हैं जैसे लॉयंस हो गए, टाइगर्स हो गए, इनके कैनन्स बड़े होते हैं क्योंकि उनको किसी चीज को होल्ड करना पड़ता है और टीयर करना पड़ता है। तो वो जो कैनाइंस है, दिस इज सेकंड पोर्शन, कैनाइंस। इट्स just a meaning of canines is folding and the tearing. Then premolars is placed anteriorly to the molars, that is bicuspid. Bicuspid means अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है प्रीमोलर्स, यहाँ पे दो ही कप्स दिखते हैं। ये जब आईने में हम देखेंगे तो ये हमें अच्छे से दिखता है, यहाँ पे दो ही पार्टीशन हमें दिखते हैं। प्रीमोलर्स में हैविंग द 3 to 5 masticating cups, और ये जो होता है ये सिर्फ ब्लाइंडिंग के काम में आता है। मीन्स टीयरिंग, कटिंग ये जो होता है इट्स रिलेटेड विद इंसिजर एंड द कैनाइंस, whereas premolars and the molars they are related with the grinding. In part, ये बहुत बार हमें पता नहीं होंगे, that is starting with the first one, crown, root, neck. जो upper portion है that is related called as a crown. This is the root जो embedded होता है periosteum में, means alveolar arches में, mandible के alveolar arches और maxillary के alveolar arches में, that is related with the root. और जो हमें दिख रहा है का portion that is called as a crown. Then again, internal structure composed of pulp, dentine, enamel, cementum and periodontal membrane. Basically pictures में ये अच्छे से दिए हैं बीच में। This is central, that is pulp. ये जो पूरा सीक्वेंस है उसी हिसाब से सेंटर पे डेंटाइड है, फिर एनिमल है, फिर cementum है, फिर periodontal membrane है। तो in the center they having the pulp, और उसके बीच में ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखता है that is related with bulk, blood capillaries और blood vessels। ठीक है, उसके आउटर साइड में हैविंग द डेंटाइन। तो ये येलो स्ट्रक्चर में आपको जो कंप्लीटली दिख रहा है, दैट कंप्लीट हैविंग द डेंटाइन। देन आफ्टर डेंटाइन इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, दैट इज एट द क्राउन पोर्शन वी हैविंग द एनिमल। अब बॉडी में सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है ये। बहुत बार अगर कोई अपने जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन होगा तो बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो दिस इज द एनिमल। बोन से भी हार्ड होता है। देन in the alveolar arch just it is replaced by the periodontal membrane, and lastly it is just replaced by the cementum and lastly having the periodontal membrane. So structurally इस तरीके से होते हैं, having the parts and the structural parts. Then hard palate, जो भी बताया कि जो बोनी पोर्शन है it is related with the hard palate. Basically ये दो बोन से बनता है। First one palatine process of maxilla, second one horizontal plate of maxilla. तो ये जो पोर्शन है a maxillary bone, तो anteriorly यहाँ पे जो maxilla bone होता है तो यहाँ पे वो complete bony formation होता है upper segment of the oral cavity, that is the maxilla. Basically ये जो पोर्शन है ये दो कैविटी को डिवाइड करता है, दो कैविटी इन द सेंस ऑफ नोज एंड द ओरल कैविटी। पटेला या हार्ड पैलेट, अगर हार्ड पैलेट नहीं रहा तो दोनों कैविटी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होती है। बेसिकली ये एक कंजेनाइटल एनोमली है, दैट इज कॉल्ड एज पैलेट। ये जो दो पैलेट है फ्यूज नहीं होते, इस कारण ये कैविटी ओपन रहती है। कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन भी होती है, इसलिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी आती है, गवर्नमेंट ऑपरेशन वगैरह कंडक्ट करती है। बहुत बार आपने ये पेशेंट्स टीवी पे भी देखे होंगे क्लिप पैलेट के। तो दिस इज जस्ट मैक्सिला। और लास्टली जो posteriorly एक बोनी पोर्शन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैलेटिन, दैट इज फॉर्म बाय द पैलेटिन बोन इटसेल्फ। जैसे कि उसके प्लेट के नाम अलग अलग दिए हैं, इसके यहाँ पे दो सरफेसेस दिए हैं, कुछ पर्दे जैसा है, बोन है, इसलिए अपर सेगमेंट सरफेस है, लोअर सरफेस है। अपर सरफेस इट इज रिलेटेड विद द फ्लोर ऑफ द नोज एंड लोअर सरफेस इट इज रिलेटेड विद द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। अब बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो पैलेट बनता है, तो ये पैलेट फ्यूज्ड होते वक्त राइट एंड लेफ्ट, मींस जब बॉडी यहाँ से बन रही है तो डेवलप होते वक्त ये जो पोर्शन है राइट का अलग डेवलप होता है, लेफ्ट का अलग डेवलप होता है और बाद में फ्यूज्ड होता है। इसलिए यहाँ पे सेंट्रली स्ट्रक्चर है और ये अगर फ्यूज नहीं हुआ तो क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड एज लेफ्ट पैलेट। देन नेक्स्ट दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। ये मूवेबल मस्कुलर फोल्ड है सस्पेंडेड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। अब
आगे हार्ड पैलेट है, उसके ही पोस्टीरियर बॉर्डर को सॉफ्ट पैलेट अटैच होती है। इट सेपरेट्स द नेसोफैरिंक्स टू द ओरोफैरिंक्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अब ये दोनों कैविटी है, ये पोस्टीरियरली ओपन हो रही है। जैसे आपने बहुत नेति वगैरह की होंगी, तो बहुत बार हम नेति करते हैं, देखते हैं कि मुंह में से पानी वगैरह आ रहा है, क्योंकि पोस्टीरियरली दे हैविंग सिंगल कैविटी। ठीक है, नेति धोती करते वक्त भी ये चीज हम देखते हैं, थ्रेड इंसर्ट करते हैं नेजल में से, उसको ये करते हैं। तो ये जो पोर्शन है, क्योंकि ये दोनों कैविटीज पोस्टीरियरली ओपन है, और वो जो जहाँ पे ओपन होती है, तो नेजल नेजल कैविटी एक्सेप्ट पोस्टीरियरली कैविटी जहाँ पे ओपन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नेसोफैरिंक्स। और ओरल कैविटी पोस्टीरियरली जो ओपन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन ओरोफैरिंक्स। और उसके नीचे फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कंप्लीट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज एन फैरिंक्स। So, separates nasopharynx and oropharynx. The main function of the soft palate is traffic control at the crossroad between the food and air passages. इसलिए बहुत बार जैसे हम बोलते हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए वगैरह, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, और हम खाना भी खा रहे हैं तो सांस, खाना खाते वक्त अगर हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली द एयर एंटर टू द माउथ आल्सो एंड द नोज आल्सो। ऐसे कंडीशन में पाथवे एक ही है, कैविटी ओपन हो रही है, तो इसलिए जो हमको से वो ये आता है, खांसी आती है, अगर कुछ ये हो गया, हंसते हंसते हम खा रहे हैं, तो ये बेसिकली उसको कंट्रोल करता है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो ये जो फोल्ड है वो ब्लॉक कर देंगी, ओरल नेजल कैविटी को पार्शियली ब्लॉक करेंगी। और अगर ये नहीं है, जस्ट इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन चल रहा है, जैसे हम एक्सरसाइज करते तो सांस बढ़ जाती है, ऐसे कंडीशन में वो झुक जाता है टुवर्ड्स द ओरल कैविटी। अब बेसिकली ये ट्रैफिक कंट्रोलर है, कर्टन पूरा क्लोज नहीं करता कैविटी को, ना नेजल कैविटी को करता है, ना ओरल कैविटी को करता है। इसलिए अगर सांस बढ़ भी गई तो बहुत बार हम उससे जो सांस लेते हैं तो वो पार्शियली एडजस्टेबल रहती है फॉर दैट पर्पस। दैट इज सॉफ्ट पैलेट, again having two surfaces and the borders, and main one, that is the movement and the function that controls the two gates, that is the nasopharynx and the oropharynx. Important role in chewing, swallowing, cough and sneezing. पोस्टीरियरली है, और जैसा मैं बोल रहा था कि वो ईयर का बैलेंस मेंटेन करती है, नोज से आ रही है या माउथ से आ रही है। इसलिए जब हम बोलते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में प्रेशर जो होता है एयर का एज कम्पेयर्ड विद नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, वो बढ़ जाता है। तो उस भी प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। आइसोलेट फ्रॉम द माउथ from the oropharynx during chewing, so that its breathing is unaffected. ये भी हमने देखा। Then separates the oropharynx and nasopharynx, ये भी देखा। By varying the degree of closure of the pharynx, quantity of the voice can be modified and considered correct pronunciation. अब जैसा मैंने बोला कि ये कंट्रोल कर रहा है एयर एंट्री को और एयर पैसेज को। इस कारण हम इसकी डिग्री को वेरिंग कर चेंज करके हम जो हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी अल्टर कर सकते हैं। इसलिए बहुत बार हम जो मिमिक के आर्टिस्ट देखते हैं तो बेसिकली वो यही कहते हैं कि जो अब ये वॉलेंटरी होता है, वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो साउंड अलग आता है। नहीं तो अगर हमें हमारा साउंड चेंज कर रहा है तो उसको सिर्फ डिग्री चेंज करनी पड़ती है। जैसे बहुत बार हमने विसल्स देखे हैं, उसको हम जब मारते हैं तो उससे आवाज आती है, ये सम जस्ट सेम लाइक दैट, कि वो हम एंट्री हो रही है, उस कारण हमारा ये बाहर निकल रहा है, साउंड बाहर निकल रहा है, तो ये भी उसकी भी टोन एडजस्ट करने का काम ये सॉफ्ट पैलेट करता है। डाइजेशन प्रोसेस में डिग्लूटेशन, अगर वो पोस्टीरियरली हमने रख दिया तो खुद एंगल डिग्लूट कर लेगा, क्योंकि वो मूवेबल है इसमें। नेक्स्ट एंड द फर्स्ट स्ट्रक्चर that is taking actual part in the formation of the digestive system, that is the esophagus. Means larynx था, larynx के बाद larynx, larynx के बाद esophagus होता है। तो larynx is the basic portion that is related with an anterior portion, just related with an respiratory system, and just posterior to the larynx you will have another structure called as an esophagus, and it is related with the digestive system. Larynx के बाद it opens into esophagus. The esophagus just being at the neck of the lower body, prepared cartilage. ये जो portion है जहाँ पे हम, जैसे मैंने एनाटॉमिकल हमने लैंडमार्क्स देखे थे नेक के, तो यहाँ से अगर दिस इज द चिन ऑफ द मैंडिबल ऑफ द मेंटी सिम्फाइसिस, उसके नीचे यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें
प्रोमिनेंट ये दिखेगा दैट इज रिलेटेड विद द थायराइड कार्टिलेज, उसके नीचे एक और कार्टिलेज है, वहां से वो स्टार्ट होती है, कहाँ तक है तो जस्ट 11 तक होती है, डायफ्राम को पियर्स करती है और फिर एब्डोमेन में आती है। बेसिकली डायफ्राम, अब ये जो कैविटी है मिडल पोर्शन, इट इज रिलेटेड विद द थोरैक्स, इट इज रिलेटेड विद द एब्डोमेन, तो ये दोनों कैविटी डिवाइड होती है बाय डायफ्राम, और वो डायफ्राम को भी पियर्स करके नीचे जा रहा है जस्ट कंटिन्यूअस विद द स्टमक। तो ये जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, बॉडी में एंटर होता है तब, and that 3 portion, that is first one cervical part, thoracic part and the abdomen part, means cervical region से start हो रहा है, this is the cervix bone, neck के जो bones है, so this portion is called as a cervical portion, then thorax and then the abdomen, abdomen में बहुत छोटा है वो present होता है, और उसके बाद यहाँ पे basically curvatures भी अलग होते हैं, जैसे हमने vertebral column देखते हैं, कर्वेचर्स होते हैं लैटरल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर, वो सिर्फ पोजीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि ये पोस्टीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है रिलेटेड टू द और रिलेशन विद द वर्टिब्रल कॉलम, सो उसके भी कर्वेचर्स उन्होंने दिए हैं, एग्जैक्टली मिड लाइन में नहीं है, वो पोस्टीरियरली कर्व फॉर्म कर रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर लैटरल, देन वो नीचे आ रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, तो वो इस हिसाब से बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है। इन दे हैविंग कॉन्स्ट्रिक्शंस जस्ट जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, अब ये भी चीज काम में इसलिए है क्योंकि कहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस है उस हिसाब से एनाटॉमिकल चेंजेस ये होते हैं, और ये नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शंस है जो इसोफेगस में हमें दिखते हैं, फर्स्ट एट लेवल ऑफ C6 then T4 T5 एंड T10, और रीजंस हमने दिए हैं, आप इसको एक बार रीड कर लेना, मैंने पीपीटी डिटेल में बनाई है कि एक ही जगह पे सभी मिल जाए। These are the parts, then the important structure that is the mucosa or the layers of the esophagus. अब basically पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर्स इसी तरीके से होती है, दैट इज म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड एडवेंटिशिया, ये हम फिजियोलॉजिकल सेक्शन में स्टार्टिंग में लेंगे, उसमें भी सब डिविजन्स होता है, म्यूकोसा में 3 लेयर, सबम्यूकोसा में 2 लेयर, देन मस्कुलरिस एक्सटर्ना में 2 लेयर्स होते हैं, और एडवेंटिशिया इट इज जस्ट आउटर मोस्ट लेयर। अब हर जो कोई सिक्रेशंस होता है दे आर रिलेटेड विद सबम्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लेयर, सबम्यूकोसल लेयर, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, यहाँ पे 2 टाइप फाइबर्स पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें मिलेंगे, दैट इज राउंडेड एंड सर्कुलर फाइबर, सबसे पहले ऊपर सर्कुलर आएंगे, उसके बाहर लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स आएंगे, और ये चीज इंपॉर्टेंट है व्हाइल द फिजियोलॉजिकल सेक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज हमें मिलने वाली है, जैसे कि म्यूकोसा दैट इज द एपिथेलियल लाइनिंग, सब म्यूकोसा which is mucus secreting for the esophageal gland, then muscularis externa it is having the outer, middle, lower and the longitudinal and inner circular, ये हमने अभी बताया, और एडवेंटिशिया इज लास्ट वन, और मस्कुलरिस में फाइबर्स होने के कारण जो राउंडेड स्ट्रक्चर है या जो कोई शेप है एसोफेगस का, वो इसी लेयर्स के कारण होते हैं। तो दिस इज द प्राइमरी 4 लेयर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा सा डिफरेंस है इसोफेगस और स्टमक और इंटेस्टाइन से लेके आखिरी तक इंटरनली, तो वो हम पूरा फिजियोलॉजिकल सेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज आमाशय और द स्टमक। बेसिकली आयुर्वेद में आमाशय बोला गया है, आम दैट इज रिलेटेड विद अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज आम कहाँ पे प्रेजेंट होता है आयुर्वेद में, बोला है कि नाभि स्थानांतर मींस इन बिटवीन द ब्रेस्ट एंड द अम्बिलिकल रीजन, वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। अन्नवाह स्रोत का मूल स्थान है कि अन्नवाह स्रोत रिलेटेड विद एन फूड, जहाँ पे वो स्टोर्ड होता है, दैट इज आमाशय। इन मॉडर्न साइंस इट इज कॉल्ड एज एन गैस्टर और वेंटर, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्टर बोला जाता है, वेंटर भी एक नाम है। देन इट इज द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। बाकी डाइजेस्टिव ट्यूब वो उसने इसलिए इन्होंने कही कि वो कंप्लीटली कैनल है, इसलिए उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब बोल सकते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्यूब का सबसे एक्सटेंसिबल और डायलेटेड पोर्शन ये स्टमक होता है, इसलिए जो कुछ चीजें हम खाते हैं वो स्टोर्ड होती है इन द स्टमक। जैसे जैसे डाइजेस्टिव प्रोसेस बढ़ेंगी
वो स्टमक से डिओडेनम में आएगा, डिओडेनम से जेजुनम में आएगा, जेजुनम से इलियम में आएगा, फिर सीटम, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and then rectum and the null cavern. So this is the most dilated portion lies between the esophagus and the duodenum, acts as a reservoir of the food and helps in the digestion of fat and the protein. Then location, 9 parts of abdomen हमने starting में देखे थे. This is the parts. तो इसमें epigastric, left hypochondrium और umbilical region में होता है. This is somewhat J-shape. हम डायग्राम में देख सकते हैं. Then partially descended रहा तो piriformis, obese person में horizontal होता है. अब basically जो obese person होते हैं तो इनके अंदर फैट ज्यादा होती है. फैट की जगह पे ज्यादा होता है बॉडी में, that is related with abdomen and the thigh. ठीक है. और abdomen में भी within the momentum, जो greater momentum एक ये होता है, that is also called as the policement of the abdomen. अगर हमने abdomen open किया तो in superficial layer में having two layers, that is fatty layer and the membranous layer. तो membranous layers तो abdomen में वहाँ पे भी फैट ज्यादा होगा. अगर fatty portion obese person है उसको दोनों को कट करने के बाद जब हम entirely periodontum कट करने के बाद हम abdomen open करते हैं तो they having portion called as greater omentum. ग्रेटर ओमेंटम ये भी फ्लैट एम्बेडेड होता है, तो ये अटैच होता है टू द लेसर कर्वेचर एंड दैट ग्रेटर ओमेंटम इज अटैच्ड टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड लेसर ओमेंटम इज अटैच्ड टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. तो वो उस डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए ओबेस पर्सन में वो हॉरिजॉन्टल बताया गया है. देन डायमेंशन 10 इंचेस का होता है. कैपेसिटी दी है एट बर्थ, एट प्यूबर्टी. छोटे बच्चों में थोड़ा सा भी खाना खा लिया तो उनका पेट भर जाता है और हमें लगता है कि वो खा नहीं रहा. ऐसे बहुत बार होता है. उनका स्टमक की कैपेसिटी 30 ml की है. एट प्यूबर्टी इट इज 1000 ml. मींस इन प्यूबर्टी कंडीशन 20-30 साल तक उसकी जो है वो इट्स जस्ट रिलेटेड विद 1000 ml. और उसके बाद इन एडल्ट इट्स 1.5 to 2 लीटर्स उसकी नॉर्मल कैपेसिटी होती है. और बेसिकली डाइजेशन अगर प्रॉपर चाहिए तो शायद ये अष्टांग हृदय में सर ने लिया होगा. 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं और 1/3 हिस्सा खाली रहना चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन. उसमें वात का पोर्शन 1/3 बोला है कि हम 2/3 खाना खा सकते हैं, 1/3 उसको एम्प्टी रखना पड़ता है. तो इसका भी ये जो कैपेसिटी दी है उसके 1/3 हमें यूज करना चाहिए. देन orifices having 2 openings. First one called as an cardiac opening, second one called as pyloric opening. Means जो ऊपर के साइड में है it's related with an heart, so that is called as an cardiac opening. Lower side में that is called as an pyloric and orifice. means दो opening है. Then lesser curvature, greater curvature. जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो. देखो छोटा है so it is called as a lesser curvature. ये कर्वेचर बड़ा दिखता है so this is called as a greater curvature. देन वो उन्होंने बॉर्डर्स भी कहा है. वहाँ पे जो अभी मैंने बताया कि ग्रेटर ओमेंटम लेसर ओमेंटम अटैच होता है. विद इन द लेसर ओमेंटम दे हैविंग द कैविटी डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द ग्रेटर चेंबर एंड द लेसर चेंबर ऑफ द एब्डोमेन कैविटी. तो वहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो दे आर जस्ट एनाटॉमिकल. यहाँ पे जो अच्छा वो आगे होगा. देन सरफेसेस एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वो भी सेम है. पोस्टीरियर सरफेस में अलग सा एक स्ट्रक्चर कहा गया है. That is called as a stomach bed. Basically, stomach bed इसको कहा जाता है कि किस चीज पे स्टमक पड़ा है, यानी किस से वो पोस्टीरियरली रिलेटेड आता है. सेवंथ ऑर्गन प्रेजेंट हुआ दिया वो हमने यहाँ पे लिए नहीं है, सिर्फ ओनली रिलेटेड विद दैट पोर्शन. देन कार्डियक एंड क्या है, पाइलोरिक एंड क्या है, वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो इस चार्ट पे हमने लिया है. देन इंटीरियर ऑफ द स्टमक, ये जैसे हमने बोला कि डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए ये काम में है. Interior of the stomach, layers of the stomach. Starting with the interior of the stomach, that is first one, that is called as a gastric rug, and then gastric canal and gastric pits. तो जैसा यहाँ पे हमें दिख रहा है जैसे स्टमक और ये लाइनिंग्स जो दिख रहे हैं वो म्यूकोजा है. म्यूकोजा है जो इनर लेयर फॉर्म करता है स्टमक की. और वो डिस्टेंस, अब ये मोस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट है. तो डिस्टेंस होने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट रहते हैं म्यूकोजा में और मस्कुलर फाइबर्स लेयर में वो यहाँ पे डायरेक्टली दिखते हैं. इसलिए ये फोल्डेड रहता है. यहाँ पे आपको कैविटीज दिखेंगे, लाइनिंग्स दिखेंगे. और लाइनिंग्स जो है दैट लाइनिंग्स इज
कॉल्ड एज एन रिजेस, और उसी को उन्होंने गैस्ट्रिक रग्स बोला है, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक कैनल, जैसे ये लेसर कर्वेचर है, ठीक है। कोई चीज हमने अगर खाई तो वो यहाँ से नीचे आएंगी, यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। अगर सॉलिड है तो वो स्टोर हो जाएगी, अगर कुछ लिक्विड है, अगर हम डायरेक्टली ले रहे हैं तो वो ऊपर से आएगा और डायरेक्टली नीचे चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो इनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्मूथ होता है एज कंपेयर्ड विद द अदर वन, एंड दैट स्मूथ पोर्शन इज कॉल्ड एज एन गैस्ट्रिक कैनाल, ठीक है। मींस अगर कोई चीज एकदम से ऊपर से नीचे जा रही है तो बहुत बार हम ये देखते हैं, झरनों में देखते हैं कि डायरेक्ट अगर नीचे जा रही है तो वो पोर्शन पत्थरों का भी स्मूथ हो जाता है। ये तो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये उस कारण यहाँ पे स्मूथ हो गया है। और स्मूथ होने का दूसरा भी कारण है कि वहाँ पे म्यूकोजल फोल्ड्स नहीं रहते एट द लेसर कर्वेचर, और दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक कैनाल। गैस्ट्रिक पिट्स, ये जो रग्स है, गैस्ट्रिक रग्स, उसके ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, सीक्रेट करते हैं HCl, गैस्ट्रिक जूस वगैरह वगैरह। ये सीक्रेट्स जिस पोर्शन से होता है, तो हैविंग पिट्स, ठीक है, तो वो वेस्टिबुलर स्ट्रक्चर वहां से बाहर निकलेगा, डक्ट बाहर निकलेंगी, और वो पिट्स से बाहर निकलती है। तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, हमें दिखते नहीं। कैनल हमें दिखता है, गैस्ट्रिक रग हमें दिखता है, गैस्ट्रिक डक्ट हमें नहीं दिखता। हर डक्ट, हर सेल यहाँ पे ओपन होंगी, पोर्शन इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक पिट्स। इन स्ट्रक्चर हमें इंटरनली ऑफ द स्टमक दिखेंगे। mucosal folds called as gastric rug, gutters between the two passages, gastric canal and gastric pits. That is the honeycomb appearance because of the process of depression, gastric pits, और उसी के ऊपर gastric glands के ducts ओपन होते हैं। Then interior of the stomach, then हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे esophagus में बोला गया था, सेम लेयर से mucosa, submucosa, muscular coat and the serous coat, उसी को एडवेंटिशियस लेयर बोलते हैं। यह सेम लेयर हमें इसमें दिखेंगे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। सिस्टम अलग अलग है, प्रेजेंस ऑफ लिम्फ नोड अलग अलग है, उसके फंक्शंस अलग अलग है। तो फंक्शनल चैप्टर फिजियोलॉजी के इसमें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन आफ्टर द stomach will having another organ called as an duodenum, jejunum and the ileum. ये तीनों पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में काउंट होते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट जनरल डिस्क्रिप्शन, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हमने देखा कि हैविंग टू एंड्स ऑफ द स्टमक, कार्डियक एंड पाइलोरिक एंड। तो पाइलोरिक एंड से वो स्टार्ट होता है अप टू द इलियोसिकल जंक्शन, मींस इलियम में खत्म हो रहा है, पर एग्जैक्टली कहाँ, तो इलियम और सिकम, सिकम इज द पोर्शन रिलेटेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन, तो इलियोसिकल जंक्शन में वो क्लोज जॉइन होता है। तो दैट इज अराउंड 6 मीटर, इट्स ग्रेटर इन मेल देन द फीमेल, ग्रेटर इन कैडावर बोला है। मींस जब हमारी डेथ होती है तो ये जो स्ट्रक्चर से जो डिस्टेंडेड है, कॉन्ट्रैक्टेड है, ये थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। म्यूकोसा जहाँ पे लूज होता है सिक्रेशंस कम हो जाने के कारण, तो ये कैडावर में नॉर्मली बड़ा मिलेगा, मेल्स में ज्यादा एज कंपेयर टू फीमेल। then divided into two portion, that is upper one is the fixed one and the lower one that is the mobile one. इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, उसके कॉइल्स होते हैं, वो 6 मीटर की चीज है जो एब्डोमेन में है, ठीक है। अब इतनी बड़ी चीज एब्डोमेन में फिट होने के लिए वो कैसे होंगी, तो दे हैविंग द कॉइल्स, वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड है। तो लोअर पोर्शन दैट इज द मोबाइल वन। अब जैसे जैसे स्टैटिक मूवमेंट आगे बढ़ेंगी, डाइजेशन आगे बढ़ेगा, फूड आगे बढ़ेगा, तो वो उस चीज से पल्सेशन, रिलैक्सेशन या पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से उसको आगे बढ़ाता है, इसलिए उस चीज से भी वो खुद को डेवलप करता है। लोअर पोर्शन इज द मूवेबल वन, अपर 2/5 फॉर्म्स द जेजुनम, लोअर 3/5 फॉर्म्स द इलियम। रिलेवेंट फीचर्स, बहुत बड़ा एरिया है, 6 मीटर है, ठीक है। उसके बाद भी having great rate presence of circular folds, mucous membrane, villi and the macrovilli. Starting with the first one, that is Lica circularis. अब intestine जो है, it's not just a tube like हम पानी में ये कर रहे हैं, जैसे हमने गैस्ट्रिक ट्यूब बोला है, जैसे पानी में प्लांट को हम देते हैं, तो वहां पे वो स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन intestine ये tubes having continuous foldings of the mucosa. अब दो कारण है, जो मेन फंक्शन है इंटेस्टाइन का, इट इज द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए भी यहाँ पे डक्ट होंगी। उसके बाद जो कुछ पोर्शन डाइजेशन का बचा है उसके लिए यहाँ पे म्यूकोजल, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होती है, वहां से भी वो सीक्रेट होती है। अगेन जैसे हमने स्टमक में बोला, तो हैविंग द लाइनिंग्स,
इस लाइनिंग को दे आर कॉल्ड एज प्लीका सर्कुलरिस। देन कहाँ पे ज्यादा होती है कहाँ पे कम होती है वो दिया है। इट स्टार्ट्स विद द सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम। देन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो कम होते जाती है। क्लोजली सेट एंड प्रॉक्सिमल टू द जिजियम, स्टार्टिंग जिजियम में ज्यादा है और डिमिनिश होते जाती है जब वो इलियम में आते हैं। लास्ट इलियम में जिजियम और प्रॉक्सिमल इलियम में वो कम होते जाते हैं और सबसे लास्ट में इलियम में वो एब्सेंट होती है। दिस इज प्लीका सर्कुलरिस। अब इसका अगेन पोर्शन वही है, क्यू है, एक्सटेंशन करता है, लेंथ बढ़ाता है उसकी। अगर आप ज्यादा करना रहा तो वो उस काम में आते हैं। देन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन वी आर हैविंग विलाइज एंड द माइक्रोविलाइज। अब जैसे वहां पे गैस्ट्रिक पिट और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमने डक्ट्स लिखे थे, तो सेम यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या कुछ सप्लीमेंट रहती है ब्लड वेसल्स या जो डायरेक्टली हमें न्यूट्रिशन ट्रांसफर करने हैं, तो ये पूरी प्रोसेस इंटेस्टाइन में होती है, एब्सॉर्प्शन और रीअब्सॉर्प्शन की। और ये जो होती है ये थ्रू विलाय होते हैं। तो ये विलाय बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो दिस इज द विलायस। और विलायस के ऊपर फिर से विलाय होते हैं। अब जैसे ये चीज है, सिंपल प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर एक विलाय फॉर्म हो गया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, अगर ये प्लेन रहता तो इसका सरफेस इतना ही रहता। अब यहाँ पे एक विलाय है, इससे इतना सरफेस एरिया बढ़ गया। अब इसके ऊपर भी छोटे छोटे माइक्रो विलाय। ठीक है, ये सरफेस बढ़ाने का काम करता है। मींस जो 6 मीटर है वो कंप्लीट सरफेस एरिया इट्स रिलेटेड विद विलाय, माइक्रो विलाय, प्लीका सर्कुलरिस। और ये पूरा एब्जॉर्प्शन के काम में आता है, जैसे जैसे हम फूड प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। इन इंटेस्टाइनल विलाय ये भी बताया, इच विलस हैज द लेयर्स ऑफ एब्सेप्ट कोलुमनर सेल्स, ये भी हमने डिस्कस किया। देन ये जो है इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द 8 टाइम्स। म्हणजे जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का एरिया है विलाय और माइक्रोविलाय के कारण बढ़ते जाता है। Then next important structure, that is intestinal glands, that is called crypts of liverforms. ये secretory enzymes, digestive enzymes secretes करते हैं जो intestinal glands होती है। secretions of the digestive enzymes means जो कुछ digestion से यहाँ पे होता है वो इसी से related होता है जो glands। और ये कहाँ पे secrete हो रही है, तो again it is open through the villi which are present at that plica circularis. Then lymphatics, two types of lymphatics होते हैं, salutary lymph node, aggregated lymph node, effects on digestive process में. Then basic, having the jejunum and the ileum consist of upper two, अभी हमने देखा इसके walls थोड़े से चेंज होते हैं। Again histology same, यहाँ पे हमें विलाय और माइक्रोविलाय मिलेंगे। जेजुनम में विलाय टंग शेप्ड होते हैं, ज्यादा होते हैं, इलियम में वो कम होते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। फिर थोड़ा सा ही जो कुछ रहा वो लार्ज इंटेस्टाइन में दैट रिलेटेड विद वाटर एंड ऑल, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे। तो ये यहीं पे रहते हैं, इलियम में वो कम होते जाते हैं और डिस्टल एंड ऑफ द इलियम में खत्म हो जाते हैं। देन लार्ज इंटेस्टाइन divided into again several structures, that is starting with the ileocecal junction, means ileum जहाँ पे खत्म हो रहा है, cecum वहाँ से start हो रहा है, about 1.5 meter long, then divided into starting with the cecum, then ascending colon, then ascending colon से transverse colon में वो angle form हो रहा है, means this is ascending colon, this is transverse colon। तो ये जो बीच के दोनों के बीच में जो flexure form हो रहा है, that is called the right colic flexure or the hepatic flexure। फिर ट्रांसवर्स कोलन अगेन वो नीचे आ रहा है, तो दे हैविंग द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर और कॉल्ड एज स्प्लेनिक फ्लेक्सर। उसके बाद डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइड, देन रेक्टम एंड देन एनन कैलन एंड ओपन्स टू द एनस। हर एक की लेंथ भी है यहाँ पे हमने मेंशन की है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, दिस इज सिकम, दिस इज असेंडिंग कोलन, दिस इज राइट फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलन, लेफ्ट फ्लेक्सर, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन एंड रेक्टम एंड द एनन। इसके रिलेवेंट फीचर्स, मेन सबसे बड़ा वाइट कैलिबर होता है, 1.5 सेंटीमीटर मीटर का है, इसलिए सबसे ज्यादा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ छोड़ रहता होगा तो दैट इज रिलेटेड विद लार्ज इंटेस्टाइन। मींस स्टार्टिंग में जो हम खाना खा रहे हैं दैट इज स्टोर्ड इन द स्टमक। देन जैसे जैसे डाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगी, स्टमक का डाइजेस्टेड फूड नीचे आएगा डायडियोडेनम में, वहां से डाइजेशन आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम में, इलियम में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वो स्टोर्ड भी रहता है, वाटर भी एब्सॉर्ब करता है,
हैविंग द वाइडर कैलिपर। देन यहाँ पे जो चीज अलग होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी वो पहले देखेंगे। अपेंडिक्स इपिप्लोइसी, ये जो चीज है दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं येलो कलर के, दिस इज कॉल्ड एज एन अपेंडिक्स इपिप्लोइसी। अब बेसिकली ये फैट के होते हैं, मींस लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फिक्सली अटैच है, पर कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं वो मूवेबल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए वहां पे फ्रिक्शन ना हो वो मूव करते वक्त। यहाँ पे फैट फिल्ड स्पेसेस होते हैं, पाउचेस फॉर्म करते हैं ड्यू टू द पेरिटोनियम। अगेन दे हैविंग द सिक्रेशंस, वो मॉइस्ट रखने का काम करता है एक्सटर्नली लार्ज इंटेस्टाइन को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज लिनिया, दैट इज टीनिया कोलाई। ये जो चीज है डायग्राम में देखेंगे डायरेक्टली, ये जो लाइनिंग दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज एन टीनिया कोलाई। ये जो बीच की लाइन जो आपको दिस इज कॉल्ड एज एन टीनिया कोलाई, ठीक है। और ये जो टीनिया कोलाई है ये कंप्लीटली लार्ज इंटेस्टाइन है। अब ये टीनिया कोलाई की जो लेंथ होती है एक लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है, इस कारण ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे पाउचेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक पाउच, दूसरा पाउच, तीसरा पाउच, चौथा पाउच, पांचवा पाउच, क्योंकि ये टीनिया कोलाई, तीन टीनिया कोलाई ईच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रली प्रेजेंट है, उसकी लेंथ छोटी है, इसलिए वो आजू बाजू के स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पे ये हॉल्स या हॉस्ट्रम फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो दिस इज टीनिया कोलाई, दिस इज हॉस्ट्रम, और ये कंप्लीट लेंथ नहीं होने के कारण वो पाउचेस में फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज हॉस्ट्रम, ईच सेक्स्ट्रम, ईच जो पाउच होता है दिस इज कॉल्ड एज एन हॉस्ट्रम, दिस इज अपेंडिक्स एपिप्लोइसी, और ये टीनिया कोलाई। अब ये टीनिया कोलाई के भी एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियम के हिसाब से नाम टीनिया लिबरा, टीनिया मेडिकोला, टीनिया ओमेंटालिस, ये कुछ काम का नहीं। उसके बाद असेंडिंग कोलन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्स कोलन कहाँ से कहाँ तक है, डिसेंडिंग कोलन कहाँ से कहाँ तक है, सिगमेंट कोलन कहाँ से कहाँ तक है, वो यहाँ पे मेंशन किया। देन सीकम और अपेंडिक्स। सीकम सबसे पहला पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो मटेरियल फूड मटेरियल आया दैट प्लेस्ड इन द सीकम, इसलिए इसे और एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज स्टोर हाउस, ठीक है। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, इन ग्रीक इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लाइंड सैक, ठीक है। कि सैक मींस वहां पे जाके स्टोर हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सीकम। तो सीकम इज अ पाउच कनेक्टिंग टू द इलियम, ascending colon, सेपरेट बाय द स्टीनोसिकल वॉल। अब जहां से इलियम से आ रहा है अप टू द सीकम, तो यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती है, जहां जहां पे ओपनिंग है वहां वहां पे यहाँ पे वॉल है, ठीक है। मींस पाइलोरिक, कार्डियक, ठीक है। तो कार्डियक वॉल्स भी है, पर दैट इज द फिजियोलॉजिकल वॉल। पाइलोरिक जो वॉल है दैट इज एनाटॉमिकल वॉल, वो हम अगर फिंगर इंसर्ट करेंगे तो ये हमें दिखता है। तो ये कितना फूड हमें आगे पास करना है, उस चीज के लिए यहाँ पे एंट्री हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक की है। जैसे हमने हार्ट में देखा कि दे हैविंग द वॉल्स, लेटरल वॉल, ट्राइकुस्पिड वॉल, उसके बाद सिमिलर वॉल्स, तो यहाँ पे भी हर ओपनिंग में वॉल्स है, तो सेम दे हैविंग दिस इलेक्ट्रिकल वॉल। देन दिस इज द फर्स्ट पोर्शन कॉल्ड एज एन सीकम, दिस इज द इलियम, पोस्टेरो मेडियली अटैच होता है। देन डायमेंशन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग और 7.5 सेंटीमीटर ब्रेड, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर ब्रेड में है। पूरे बॉडी में से दो तीन ऑर्गन है जिसकी लेंथ छोटी है एज कम्पेयर विद द विड्थ, उसमें ये ऑर्गन आता है। वॉल हमने देखा। देन कंट्रोल मैकेनिज्म द वॉल्स, ये भी हमने देखे हैं। इट प्रिवेंट्स रिफ्लेक्स फ्रॉम द सिकम टू द इलियम, मींस एक बार इलियम से खाना सिकम में आ गया तो वो वापस इलियम में नहीं जाता, so वही वॉल्स ये है। इट रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ इलियम कंटेंट्स टू सिकम एंड प्रिवेंट्स देम पैसेज टू क्विकली, मींस इलियम में बहुत ज्यादा अगर कुछ जमा है तो वो एकदम से प्रेशराइज से वो पास नहीं करता। जैसे यहाँ पे हार्ट में हमने देखा था कि वो लास्ट में पुल भी करता है, तो प्रेशर से वो नीचे आती है, ब्लड नीचे आता है, तो यहाँ पे प्रेशर से वो पास ना हो वो भी काम करता है बॉल। नेक्स्ट अपेंडिक्स, ये चीज हमने बहुत बार सुनी है। इट इज द vestigial organ which is present in the body and it is associated with the digestive system.
सिकम को अटैच है इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको बोला गया है। तो अपेंडिक्स इज द वर्म लाइक वर्टिकुलम, कहाँ पे अटैच होती है? तो पोस्टीरियर मेडुलरी सिकम अटैच होती है। लेकिन उसके अलग अलग पोजीशन है, दैट इज दोनों क्लॉक, बेलो क्लॉक मींस सिकम को सेंट्रल कंसीडर करके किस जगह से वो निकलेगा, इस डायग्राम को हमें देख सकते हैं। दिस इज द सेंटर पोर्शन, और वहां से कहाँ पे वो जा रहा है अपेंडिक्स, उस हिसाब से उसके नाम अलग अलग दिए हैं। स्टार्टिंग विद 11 o'clock को पैराकोलिक बोलते हैं, 12 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock। तो ये नॉर्मली ये 6 पोजीशन सिकम के दिए गए। देन डिओडेनम, यस सर। ये जो, हाँ, तो अपेंडिक्स तो एक ही होता है या 5-6 होते हैं या अलग अलग पोजीशंस पे? नहीं नहीं सर, एक ही होता है। उसके पोजीशन ये 6, नॉर्मली ये 6 पोजीशन दिए जाते हैं। उसमें भी ये जो है रेट्रोसिकल ये और पैरासिकल, ये रेट्रोसिकल ये कॉमनली दिखता है नॉर्मल इंडिविजुअल्स, ये अलग से है। अच्छा, उस हिसाब से हमें जब हम ऑपरेट करते हैं, अपेंडिसाइटिस होने के बाद अपेंडिक्टॉमी करते हैं, तो वो पहले देखा जाता है कि कौन से डायरेक्शन में वो गया है, उस हिसाब से उसका ये अंदर जाके उसको निकालना पड़ता है। तो ये नॉर्मल पोजीशन है, ये एक जगह पे नहीं रहता। जहाँ पे उसको चांस मिल गया वो बढ़ गया। जैसे मैंने बोला कि ये जो कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन है वो कम्प्लीटली सराउंडेड है, तो उस हिसाब से वो कहीं पे भी जा सकता है। तो ये पैराकोलिक मीन्स कोलिक, इट इज रिलेटेड विद द कोलॉन। पैरा मीन्स बाजू में, ठीक है। तो वो 11 o'clock, अब पैरा मीन्स ये चीज है, दिस इज सिकम, दिस इज अपेंडिक्स, और ये उसके बाद असेंडिंग कोलॉन है सिकम के ऊपर, तो ये बाजू में है, ठीक है। तो सो इट इज कॉल्ड एज एन पैराकोलिक। तो उस हिसाब से इन्होंने नाम दिए। रेट्रोसिकल मीन्स कोलॉन के पीछे, स्प्लेनिक मीन्स अगर यहाँ पे सिकम है, सिकम से स्प्लीन यहाँ पे आ रहा है, तो वो उस पोजीशन में 3 डिग्री पोजीशन में स्प्लीन को डिनोट करेगा, तो इट इज कॉल्ड एज एन स्प्लेनिक फ्लेक्सर। पेल्विक के तरफ जा रहा है, चारों 4 o'clock में उसको डिनोट करेगा, तो उसको सिर्फ नाम दिए हैं। सबसिकल वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये सिर्फ पोजीशन है, अपेंडिक्स एक ही होता है, और वो भी अगर हाँ। ओवर द लाइफ टाइम क्या पोजीशंस चेंज होती है अपेंडिक्स की? नहीं सर, मोस्टली अपेंडिक्स छोटा होता है, ठीक है। उसकी रेंज भी यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो चीज है वो उतनी रहती है, जैसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की साइज बढ़ेंगे, जैसा मैं छोटा हूँ तो मेरे सब ऑर्गन छोटे हैं, उस हिसाब से हम बढ़ते जाएंगे तो ऑर्गन्स की साइज भी बढ़ते जाएंगे, तो उतनी बढ़ती है, वो एकदम से नहीं बढ़ता। तो कंडीशन है, जैसे अपेंडिसाइटिस बोला है, तो अपेंडिक्स जितना है वो इन्फ्लाम्ड हो गया, तो इन्फ्लाम होने के कारण जैसे स्वेलिंग आई, किसी चीज को स्वेलिंग आने के कारण भी उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बढ़ता है अपेंडिसाइटिस में, क्योंकि वो इन्फ्लाम्ड हुआ है। तो वो रेंज में रहता है कि इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे हमने स्टमक बोला कि 10 इंचेस का है, 25 सेंटीमीटर का है, तो ये फिक्स नहीं है, ये वेरी है पर्सन टू पर्सन। तो ये भी जब हम बॉडी ओपन करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर का है, स्वेल्ड हुआ है क्या, तो वो पर्सन टू पर्सन भी वेरीज होती है। तो फिर अगर साइज बढ़ गई तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, क्योंकि वहां पे पेट में जहाँ पे जगह मिलेंगी कॉइल के हिसाब से, वहां पे वो चला जाएगा। ठीक, थैंक यू। देन डिओडेनम, ग्रीक वर्ड है डेक्टोलेज, मीनिंग 12 फिंगर से, नॉर्मल साइज 12 फिंगर से, इसको इसलिए ग्रीक नेम से उसको डिओडेनम बोला गया है। शॉर्ट एंड मोस्ट फिक्स पोर्शन है, सी शेप होता है, अमेरिकन रीजन में हमें ये प्रॉपरली मिलता है। इसके 4 पार्ट्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम कंसीडर करते हैं। 4 पार्ट में सबसे पहला पार्ट सुपेरियर पार्ट, सेकंड डिसेंडिंग पार्ट, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं superior, then this is descending, this is third part called as an horizontal part, and fourth one that is the ascending part, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दो डक्ट ओपन होती है विद इन द डिओडेनम, दैट इज द सेकंड पार्ट। मींस जो हेपेटिक डक्ट है वो भी सेकंड पार्ट में ओपन होती है, जो नीचे आती है। मींस वी हैविंग द गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, ऊपर से हेपेटिक डक्ट, दोनों फ्यूज हुआ फॉर्म किया बाइल डक्ट को। तो शायद आगे किसी पिक्चर में होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जो गॉल ब्लैडर है, सिस्टिक डक्ट, ये हेपेटिक डक्ट है। मींस गॉल ब्लैडर की जो सिक्रेशन है,
हिपेरिन ऑल जो डाइजेस्टिव में काम में आते हैं, गैस्ट्रिक जो हिपेटिक जूस है, ठीक है, वो यहाँ से नीचे आए, ये हिपेटिक डक्ट, ये वहां से स्टोर्ड, दिस इज बाइल डक्ट, वो ओपन हो रही है सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम, ठीक है। और पैनक्रियास के जो सिक्रेशंस है, दिस इज पैनक्रियास, ये भी ओपन हो रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, ठीक है। तो ये ऊपर से आने वाली डक्ट ये फ्यूज्ड होती है विद पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये दोनों ओपन होते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम। इसलिए जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिवर से आ रहे हैं और पैनक्रियास से आ रहे हैं, ये दोनों चीजें यहाँ पे ओपन होंगी और यहीं से डाइजेशन फिर आगे होगा। इसके ऊपर जो है वो दैट इज रिलेटेड विद गैस्ट्रम और स्टमक, एससीएल वगैरह जो है वो एसिनरल सेल्स जो प्रेजेंट रहते हैं गैस्ट्रिक, हमने ये बोले थे गैस्ट्रिक पिट्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रम में ही होते हैं, पर बाकी के जो चीजें डाइजेशन से रिलेटेड वो डिओडेनम के सेकंड पार्ट से स्टार्ट होता है। बेसिकली अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली जाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स है, दैट इज फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट मींस पहला पोर्शन, मिडगट बीच वाला और फिर हाइंडगट। तो फोरगट जो है वो स्टार्ट्स विद इसोफेगस एंड एंड्स इन फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम, ठीक है। और जहां पे ये ओपनिंग होती है यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, और ये तीनों गट एम्ब्रियोलॉजिकली अलग अलग है, यानी तीनों गट एक दूसरे के साथ जो फ्यूज होते हैं उसके बर्ड्स अलग अलग है, बाद में वो फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट गट है फोरगट एंड मिडगट, ये फ्यूज होता है विद इन द सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, जहाँ पे ओपनिंग है पैनक्रियाटिक और hepatic duct, that is called as a major duodenal papillae, having two papillas, minor duodenal papilla, major duodenal papilla। तो ये यहाँ पे ओपन होता है, इसके ऊपर फोरगट, इसके नीचे मिडगट। अगेन गट अलग अलग है तो इसके ब्लड सप्लाई भी अलग अलग है, मींस फोरगट्स दैट इज रिलेटेड विद celiac trunk, midgut that is related with the superior mesenteric artery, and inferior hindgut that is related with the inferior mesenteric artery। म्हणजे जो ब्लड सप्लाई भी है वो 3 अलग अलग आर्टरी से हो रही है, तो ये भी अलग है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम से लेके 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलम, मींस डिओडेनम आया, डिओडेनम के बाद जेजुनम आया, जेजुनम के बाद इलियम आया, इलियम के बाद इस्चियम आया, असेंडिंग कोलन आया, ट्रांसवर्स कोलन आया। ट्रांसवर्स कोलन 3 पोर्शन के 1/3 और 3/3, तो 1/3 तक जो पोर्शन है दैट इज रिलेटेड विद मिडगट, उसके बाद जो पोर्शन है दैट इज रिलेटेड विद द फोरगट, मींस ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड एनल कोलन। ये पूरा ट्यूब अलग है, बीच वाला ट्यूब अलग है और आगे का ट्यूब अलग है, तो डिवाइडेड इन 2 सेगमेंट, दैट इज फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो यहाँ से वो अलग होता है। तो ये सिक्रेशंस के कारण, डाइजेस्टिव कारण भी इसको इम्पोर्टेंट है। तो इसका भी डिस्क्रिप्टिव दिया है, कितना सेंटीमीटर का होता है, कहाँ से कहाँ तक है, कैसे कैसे रन होता है। तो बेसिकली दे आर जस्ट 4 पार्ट्स। यही यहाँ पे दिया है मैंने कि सेकंड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हैविंग 2 ओपनिंग, दैट इज मेजर डिओडेनल पैपिला और माइनर डिओडेनल पैपिला। ये आगे पैनक्रियास के वक्त हम रिपीट करेंगे एग्जैक्टली क्या है ये दो चीजें, ठीक है ना। जैसे स्टार्टिंग में बोला है हमने कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पोर्शन वो फिक्स होता है एज कंपेयर टू द लोअर पोर्शन। तो फिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक लिगामेंट कॉल्ड एज लिगामेंट ऑफ क्रीज जो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसको पकड़ सकती है। तो इसलिए अगर ज्यादा चीजें खाने में आ गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, डायफ्राम को अटैच होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो पोर्शन है ये फुल हो जाता है। अब ये ट्यूब है, ये सिंपल इस तरीके से ट्यूब है, ये पोर्शन फुल होने के बाद ये फुल हो गया तो ये चिपक जाएगा, तो ये बंद हो जाता है। इसलिए ये भी फूड एंट्री के काम में आता है, ये करता है। जैसे यहाँ पे वॉल नहीं है डायरेक्टली, वो कंटिन्यूस ट्यूब है, डिओडेनम, जेजुनम, मिलियम, ये कंटिन्यूस ट्यूब है, ठीक है। बाकी जगह पे हमने वॉल्स देखी, लेकिन यहाँ पे वॉल्स नहीं है। तो यहाँ पे ये कॉल्ड एज एन लिगामेंटम क्रीज, ये काम करती है एज अ वॉल। अगर मैंने कुछ ज्यादा खा लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डायफ्राम को अटैच होंगी, इसलिए ये ऊपर पुल हो गई। ये ऊपर पुल होने के बाद ये कंप्लीट ट्यूब ऊपर चला जाएगा। तो ये सिंपल ट्यूब है ऐसी, ये ऊपर चली गई तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, तो ये जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल वॉल का काम करते हैं, लिगामेंटम क्रीज। देन इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज पैनक्रियास। अब ये 2 सेक्शन में पैनक्रियास हम बेसिकली लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मेन फंक्शन है, इसी के साथ दिस इज आल्सो अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। 3 हार्मोन्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होती है। उसमें से आजकल जो बहुत कॉमनली जो डिसीज हमें मिलता है दैट इज द डायबिटीज।
उसका भी एक हार्मोन है दैट इज इंसुलिन, ये भी पैनक्रियास सीक्रेट करता है। तो दैट पोर्शन इज रिलेटेड विद द एंडोक्राइन सिस्टम, बट यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पोर्शन लेंगे। तो फर्स्ट वन अब कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इट इज जस्ट बिटवीन द टाइप पोर्शन। जैसे स्टार्टिंग में हमने लिया है दिस इज पार्टली एक्सोक्राइन और पार्टली एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस दैट इज रिलेटेड विद डाइजेस्टिव और पैनक्रियाटिक जूस, एंडोक्राइन दैट इज रिलेटेड विद द इंसुलिन, तो एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। देन लोबुलेटेड ऑर्गन है, उसकी लोकेशन, शेप्स, एक्सटेंशंस दिया है। जो हमारे काम की चीज है दैट इज, अब यहाँ पे भी इसके भी पार्ट्स है। अगेन 4 पार्ट्स आर देयर, हेड, नेक, बॉडी, टेल। दिस इज हेड, ऊपर सा नेक होता है, दिस इज बॉडी और दिस इज टेल। और हेड को ही एक डिफरेंट स्ट्रक्चर अटैच होता है, जस्ट कॉल्ड एज एन अनसीनेट प्रोसेस। अब ये समवॉट रिटोर्ट शेप दिखता है, जिसे हम खेतों में यूज करते हैं, तो इसको रिटोर्ट शेप भी बोला गया है। हर पार्ट के अलग अलग फंक्शंस है। जैसे टेल है, यहाँ पे आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस प्रेजेंट होते हैं, तो एम्बेडेड होता है फॉर रिक्वायर्ड फॉर द एंडोक्राइन सिस्टम। इंसुलिन वगैरह सीक्रेट होते हैं, ये टेल से होते हैं, ठीक है। और ये बीच में कंप्लीटली उसके पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस भी आ रहे हैं हर पैनक्रियाटिक लोब्यूल से, वो यहाँ पे ओपन होंगी। और ये पोर्शन है दैट इज हेड, और ये अटैच होता है टू द सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, और वो डायरेक्टली ड्रेन होता है इनटू सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। इसके 4 पार्ट्स दैट इज हेड, नेक, बॉडी, टेल। जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट। 2 टाइप के डक्ट होते हैं इसमें, एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और एक एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, हर बॉडी में प्रेजेंट रहती है। मेन डक्ट that is related with also called as an Furslungs, और ये जो डक्ट है ये कम एंटायर लेंथ में प्रेजेंट होती है। डायग्राम होगी शायद, ये जो दिख रही है दिस इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये एंटायर लेंथ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। उसके बाद एक एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। ये डक्ट की डायग्राम ये यहाँ से कलेक्ट किया, एक्सटर्नल सेल्स से उन्होंने पैनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्ट किया, यहाँ पे ओपन हुआ, ये ऊपर से बाइल डक्ट आ रही है, दोनों फ्यूज्ड होती है। मींस ये एक यहाँ पे एक ही ट्यूब फॉर्म करती है, और ये इंटरनली ये जाती है। तो ये एम्बेडेड होती है विद इन द हेड ऑफ द पैनक्रियास। इसलिए जब कैंसर वगैरह होता है, कैंसर जो है मोस्ट कॉमन इन हेड ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे ट्यूमर बढ़ेगा। अगर यहाँ पे ट्यूमर बढ़ गया तो ये जो डक्ट है, कोई भी चीज बढ़ रही है तो ये जो कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज को ब्लॉक करते जाती है। अगर यहाँ पे ट्यूमर आया तो ये भी डेंजरस होता है। उसके बाद ये पोर्शन जो है ये अटैच होता है टू द स्प्लीन। जब हमने स्प्लीन ये लिखे, स्प्लीन का जो पोर्शन होता है, हाइलम होता है, वहां पे वो अटैच होता है। इसलिए अगर किसी चीज में स्प्लीन रप्चर होगी तो स्प्लीन निकालनी है, स्प्लीन को ऑपरेट करना है, तो ये भी हमें प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि पैनक्रियास की हेड ये टेल डैमेज ना हो। देन नेक्स्ट एसेसरी डक्ट होती है, उसका पिक्चर मैंने डाला था, मुझे दिख नहीं रहा। एसेसरी डक्ट ये नीचे से निकलती है हेड से, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है दिस इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और एक डक्ट निकलती है जो अनसीनेट प्रोसेस जो हमने बोला था कि वो बड़ी है, यहाँ से इलोंगेटेड हुई है, तो वो नीचे के साइड से एसेसरी डक्ट निकलती है जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर ओपन होती है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग अलग है, यहाँ पे बाइल डक्ट और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है, और उसके ऊपर एक और डक्ट ओपन होती है दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज कॉल्ड एज एन डक्ट ऑफ Sertoli। ये ओपनिंग cranial टू वेंट्रल टू द मेन डक्ट होती है, तो ये ऊपर होती है, वो नीचे होती है। जैसे डिओडेनम में ही हमने देखा था, दिस इज मेजर डिओडेनल पैपिला। वहां पे हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है, मींस हिपर से आ रही, मींस लीवर से आ रही है और पैनक्रियास से आ रही है। और एक माइनर डिओडेनल पैपिला है जहाँ पे एसेसरी डक्ट ओपन होती है। तो ये डायमेंशन भी देखा तो ये पता चलेगा कि माइनर डक्ट ओपन है और मेजर डक्ट नीचे है। दिस इज द पार्ट्स। अब हर पार्ट में बॉर्डर्स अलग है, सरफेसेस अलग है, वो हमें काम की चीज नहीं है, सिर्फ मैंने उसको हाईलाइट किया कि किसके कितने बॉर्डर्स होते हैं, कितने सरफेसेस होते हैं, और अदर उसके क्या इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी, अब ये इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव, एज अ डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन पार्ट में।
एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, एसिनर सेल्स कंसिस्ट ऑफ 80 to 90% ऑफ पैंक्रियाटिक मास, उसी मास से वो कलेक्ट हो रहे हैं, हैविंग द एसिनर सेल्स, सेंट्रोएसिनर सेल्स। इन हिस्टोलॉजी एंडोक्राइनल पार्ट सिर्फ 2% पार्ट पैंक्रियाटिक मास होता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक मास में जो पैंक्रियाटिक टिश्यू फॉर्म कर रहा है एंटायर पैंक्रियास, उसके 80 to 90% सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन, 2% are responsible for the endocrinology. That 2% it's just related with the ancillate of Langerhans. तो टेल में मैक्सिमम नंबर में है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि टेल में न्यूमरस है। Having alpha, beta, delta and F cells, alpha secretes the glucagon, beta secretes the insulin and delta secretes the somatostatin. ग्लूकागॉन ये अगर ग्लूकोज ज्यादा है, अगर ग्लूकोज आपके शरीर में कम है, ठीक है, तो उस समय ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है और आपके शरीर का ग्लूकोज बढ़ाता है, ठीक है। और अगर आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा है तो इंसुलिन सीक्रेट होता है और वो आपकी शुगर लेवल कम करता है, ठीक है। तो ये जो है जैसे इनसफिशिएंट मींस आजकल जो डायबिटीज के पेशेंट है, फर्स्ट रीजन सेंट्रल ओबेसिटी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी के कारण वहां पे जो स्ट्रक्चर है वहां पे फैट ज्यादा है, फैट के कारण उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती, इसलिए प्रॉपर इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाता। उसके बाद जो इंटेक होता है वो भी इंसुलिन सिक्रेशन प्रॉपर ना होने के कारण वो ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब होना चाहिए विद इन द बॉडी वो नहीं होता, इसलिए फिर हमें एडिशनली बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ता है। जैसे ग्लूकोज की टैबलेट लेने के बाद, डायबिटिक की टैबलेट लेने के बाद भी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही तो हम बाहर से भी इंसुलिन बॉडी में देते हैं। इंसुलिन का मेन फंक्शन वही है कि ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना, ये भी एंडोक्राइन पोर्शन में आता है रिलेटेड विद द पैंक्रियास। मेन फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम एंड पैंक्रियाटिक, तो ये तीनों फंक्शंस पैंक्रियास से रिलेटेड है। देन हैविंग द एसेसरी ग्लैंड्स दैट आर रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। प्रॉपर्ली ये किसी भी सिस्टम में है, हम इसको बोल नहीं सकते कि ये इसमें आते हैं, बट इट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर डाइजेशन। फर्स्ट वन दैट इज द लीवर एंड सेकंड वन दैट इज द स्किन, ठीक है। वो भी हम इसी में ले रहे हैं, दैट इज फर्स्ट स्टार्टिंग विद लीवर, सबसे बड़ी ग्लैंड है। अब बेसिकली लीवर एज ए ऑर्गन हम कंसिडर करते हैं, पर बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कोई होगी तो दैट इज द लीवर। ग्लैंड किस चीज को बोला जाता है, जहां से कुछ सिक्रीशन हो रहे हैं। सो यहाँ पे हेपेटिक सिक्रेशंस जो है डाइजेशन में काम में आते हैं, इसलिए हिपर को या लीवर को दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंड। सो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट ओवर द बॉडी, सिचुएटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, कंप्लीटली राइट साइड वो उसी से कवर्ड रहता है। साइज भी बड़ी है, 600-1300 लार्जेस्ट ग्लैंड है, सीक्रेट्स द बाइल एंड प्रीवियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। बाइल सीक्रेट करता है अगर उसकी जरूरत बॉडी को कम नहीं है, ठीक है, जैसे फैटी अमीनो एसिड्स वगैरह डाइजेस्ट करना है तो बाइल की जरूरत लगती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम कुछ खा नहीं रहे तो वो सिक्रेशन कंटिन्यू चालू है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये बाइल स्टोर्ड होता है बाइल गॉल ब्लैडर, लीवर के नीचे होता है, और फिर जब हमें जरूरत नहीं रही तो गॉल ब्लैडर से वो हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट से फिर ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है। तो इट सीक्रेट्स द बाइल, आल्सो कॉल्ड एज एन हेपेटाइटिस वगैरह वगैरह जो आपने सुना होगा, जॉन्डिस वगैरह रहता है, दैट इज रिलेटेड विद हिपर। देन उसका शेप अगेन एक्सटर्नल फीचर्स अलग है, एक ही बॉर्डर है, 5 सरफेसेस है, 2 लोब्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद एक ही बॉर्डर उन्होंने दी है, इस तरीके से वो दिखता है। This is the original picture of the liver at the inferior and the posterior aspect. ये जो पोर्शन है quadrate lobe, it is present in the posterior aspect. This is quadrate lobe, this is present in the inferior aspect. अब बेसिकली एक ऑर्गन है, ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं रहता बॉडी में, वर्टिकल नहीं रहता, ये समवट इंक्लाइंड रहता है, इसलिए जो पोर्शन है दैट इज रिलेटेड विद द इंफीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियरली आता है। और यहाँ पे दिस इज द गॉल ब्लैडर, दिस इज द पोर्ट हेपेटिस, बीच का स्ट्रक्चर है जहाँ से पोर्टल वेसल्स होती है, मींस हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन या हेपेटिक डक्ट, वो यहाँ से बाहर निकलती है एक ही जगह से, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टा हेपेटिस। और ये लेफ्ट लोब है, दिस इज राइट लोब। इसके एनाटॉमिकल पोर्शन है, ये डिस्क्रिप्शन में दिए है। देन हैविंग द डिफरेंट लिगामेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर देयर, वो लोब्स को डिवाइड करने का काम करते हैं। बेसिकली जो लिगामेंट्स होते हैं, दे हैविंग 2 टाइप्स ऑफ लिगामेंट, एक ट्रू लिगामेंट, एक फॉल्स लिगामेंट। मींस पेरिटोनियम है विद इन द कैविटी, वो
लिगामेंट्स हर चीज को वहीं पे रखने का काम करती है, उसको टाई करने का काम करती है। तो पेरिटोनियम से अटैच लिवर को मुझे इसी क्वाड्रेंट में रखना है, इसलिए वहां पे 7 लिगामेंट प्रेजेंट होती है बेसिकली। उसमें सिर्फ एक लिगामेंट है, दैट इज लिगामेंटम टेरेस। वो that is related with the neurological structure, that is the umbilical vein। जैसे लास्ट टाइम में हमने देखा था कि umbilical cord से ब्लड सप्लाई होता है, प्लासेंटा से जो ब्लड आता है मदर से टुवर्ड्स द हार्ट, तो वो स्ट्रक्चर लिवर को बाईपास करके ऊपर जाता है, तो वो लिगामेंट वहां पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द लिगामेंटम टेरेस। ये नीचे प्रेजेंट होती है, दिस इज द लिगामेंटम टेरेस। यहाँ पे छोटी सी व्हाइट कलर में दिख रही है, ये दिस इज कॉल्ड एज ट्रू लिगामेंट। इसको छोड़ के बाकी लिगामेंट्स दैट इज कैल्सिफॉर्म लिगामेंट, लाइक लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, राइट एंड लेफ्ट कोरोनल लिगामेंट, ये पूरी लिगामेंट्स जो है पेरिटोनियल लिगामेंट मींस वो उसी पोजीशन में रखने के लिए वो लिगामेंट्स यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम दिए हैं सभी को, लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम टेरेस। देन फंक्शंस, मेन फंक्शंस, इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड प्रोटीन। जैसे मैंने बोला कि फैट्स जब तक सीक्रेट नहीं होगा, खाएंगे नहीं तो बाइल आएगा नहीं, तो ये पूरी चीजें यहाँ पे डाइजेस्ट करती है। ये पूरी प्रोसेस शॉर्ट में नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस मींस कार्बोहाइड्रेट कैसा डाइजेस्ट हो रहा है बहुत डिटेल में आते हैं कि पैथोजेनेसिस वगैरह कोई डिटेल में हम नहीं लेंगे, लेकिन कौन सी चीज किस सिचुएशन में आती है वो हम लेंगे। देन इट सिंथेसाइज द बाइल एंड प्रोसेस, ये जो पोर्शन है दैट इज रिलेटेड विद ब्लड पोर्शन। एक्सक्रीशन ऑफ डक्ट्स, टॉक्सिन्स, पॉइजंस, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स एंड हेवी मेटल्स। देन protective, that is the conjugate destruction, phagocytosis and antibody formation. It is stored glycogen, iron, fat, vitamin A and vitamin D। ये भी प्रोसेस है इम्पोर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड विद द लिवर। डाइजेशन के साथ वो विटामिन सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए स्टोर करने का, विटामिन डी स्टोर करने का भी वो काम करती है। जो अनरिक्वायर्ड ग्लाइकोजन है, जैसे वहां पे हमने बोला कि इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, वैसे ग्लाइकोजन सीक्रेट हो रहा है, वो सीक्रेट हो गया और इसकी जो शरीर को जरूरत नहीं है तो वो भी स्टोर्ड रहता है विद इन द लिवर। तो ये उस चीज में भी वो काम में आता है। देन नेक्स्ट दैट इज द स्प्लीन। सॉरी, हाँ सर, ये हेमेंजियोमा क्या होता है? लिवर हेमेंजियोमा, सर हेमेंजियोमा मींस इट इज द ट्यूमर रिलेटेड विद द ब्लड वेसल्स। इट्स अ इट इज द ट्यूमर रिलेटेड विद द ब्लड वेसल्स, ट्यूमर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बेसिकली स्प्लीन और लिवर ये दो चीज ऐसी है, दो ऑर्गन्स, इसमें रिच ब्लड सप्लाई मींस ब्लड एंटर हुआ, उसके बाद उसके ब्रांचिंग पैटर्न होते हैं लोब के हिसाब से जी। तो इस चीज में जहां जहां पे ब्लड वेसल्स है, उसके ब्रांचेस है, ठीक है, उस जगह पे कहीं पे भी ये हेमेंजियोमा हो सकता है। मींस हेमेंजियोमा, ओमा इट इज रिलेटेड विद द ट्यूमर, हेमेंजियो इट इज रिलेटेड विद द ब्लड। तो ब्लड कैपिलरी में कहां पे भी ट्यूमर हुआ तो दैट इज रिलेटेड विद हेमेंजियोमा। तो जहां जहां पे ब्लड कैपिलरीज वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ये दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द ब्लड। मींस आयुर्वेद में रक्त स्रोत के मूल स्थान बोले गए कि सबसे ज्यादा अगर ब्लड कहीं पे मिलेगा तो दैट इज रिलेटेड विद द लिवर, एंड वन इट इज रिलेटेड विद द ग्रेवयार्ड ऑफ डार्बिसिस, दैट इज द स्प्लीन। वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड का, ब्लड फॉर्म हो रहा है, ब्लड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये कंप्लीट दोनों जगह पे ब्लड अबंडेंट इसमें होता है। तो हेमेंजियोमा जहाँ पे भी ब्लड कैपिलरी होंगी वहां पे हो सकता है। और बेसिकली लिवर ऐसी चीज है कि अभी हम सुनते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह हम कर सकते हैं, तो हम हेल्दी इंडिविजुअल का भी लिवर कट करके दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो रीजनरेट भी होता है। अगर 116 के हिसाब से अगर हमने निकाला तो वो ये भी होता है, और उसके भी अलग अलग लोब्स होते हैं कि हम मींस ऐसे बीच में से नहीं काट सकते। ब्रांचिंग पैटर्न है ब्लड वेसल्स का, तो इन कैपिलरी जहाँ पे जा रही है उस कंप्लीट कैपिलरी से उसको लोब का डिटैच करना पड़ता है, नहीं तो वहां पे अगर मैंने आधा पोर्शन दूसरे ब्लड से लिया, आधा ब्लड कैपिलरी जहाँ पे जा रही है वहां से लिया, एक पोर्शन दूसरे कैपिलरी से जहाँ से लिया, तो हम दूसरे दोनों जगहों को लाइगेट नहीं कर सकते। इसलिए एंड आर्टरी को फाइंड आउट करके वही पोर्शन कट हम रिसेक्ट कर सकते हैं। तो वो हेमेंजियोमा भी हो सकता है। रिसेक्शन भी हम लोब वाइज करते हैं, जैसे लंग्स में भी अलग अलग टाइप्स के लोब्स होते हैं, जैसे ड्राइविंग 10 लोब्स हो गया, यहाँ पे भी ब्रांचिंग पैटर्न अलग अलग है। बेसिकली दोनों जगह का जो ब्लड सप्लायर सिस्टम है ये भी डिटेल अलग अलग होती है ब्रांचिंग पैटर्न से। जो फर्स्ट डक्ट, हेपेटिक डक्ट ओपन होगी वो बाइफरकेट होती है, फिर लोब के हिसाब से डिवाइड होती है। सेम सर्कुलेटरी सिस्टम
स्प्लीन में है, दे हैविंग ओपन एंड क्लोज। ये दो टाइप की सिस्टम है कि ओपन, इसमें वो एक जगह पे ओपन होंगी, वहां पे छोटा सा ओपनिंग रहेगा, दूसरा जो वेन्स आएंगे और वहां से वो निकल जाएंगे। सेकंड ऐसी होती है कि क्लोज सर्कुलेशन, मींस आर्टरी आई और वेन में कंटिन्यूट होके चलेगी, मींस आर्टरी का जो न्यूट्रिशन दे रही है, फिर न्यूट्रिशन उसका खुद का खत्म हो गया, तो जहां से वो स्टार्ट होंगे, मींस कैपिलरी दैट इज द एंड पोर्शन ऑफ द आर्टरी, वेन्यूज दैट इज द स्टार्ट पोर्शन ऑफ द वेन। तो ये दोनों कनेक्टेड रहती है, तो दैट इज द क्लोज सर्कुलेशन। और एक जगह पे ओपन हो रही है, दैट इज क्लोज ओपन सर्कुलेशन। ये स्प्लीन में थोड़ा सा अलग होता है। तो ये दोनों चीजें जो है बेसिकली रिलेटेड विद ब्लड वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शंस हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, मींस बाइल सिक्रेशन, कार्बोहाइड्रेट, ये जो बाकी स्ट्रक्चर्स है, जैसे प्रोथ्रोम्बियम बोला है, इट इज रिलेटेड विद द 12 फैक्टर्स दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो ये भी रिलेशन में आता है विद लिवर। सेम विटामिन ए, विटामिन डी, ये जो है इट इज विटामिन स्ट्रक्चर, ये भी लिवर के पोर्शन में आता है। तो लिवर इट्स द इम्पोर्टेंट एज दैट एस्पेक्ट आल्सो। हेमांजियोमा तो कहीं पे भी हो सकता है, और लिवर के फंक्शनिंग के हिसाब से भी लिवर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हेमांजियोमा सीरियस होता है या कैसा, इज इट अ बिनाइन थिंग, सर कैसे? कहाँ पे है और वो आगे जाके इसको ब्लॉक कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मींस अगर हेमांजियोमा मींस ट्यूमर है, जैसे मैंने अभी बोला कि ट्यूमर होने के बाद वो आगे की कैविटी को ब्लॉक करेगा, हाँ। ठीक है। अगर वो चीज किसी बड़े सेक्शन को ब्लॉक कर रहा है, मींस उसके फंक्शनिंग वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो वो इस्चेमिया में चले जाएंगे। तो हेमांजियोमा कहाँ पे है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब जैसे ये पिक्चर में आपको दिखेगा, ये कॉर्डेड लोब है, इसके बाजू में ये जो डिप्रेशन है, सबसे बड़ा डिप्रेशन, यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट है, पूरी टंग इंफीरियर वेना केवा जो हार्ट पे ओपन हो रही है। अगर हेमेंजियोमा इसके अंदर कहीं पे होगा और वो इसको भी ब्लॉक कर रहा होगा सपोज, क्योंकि वो बढ़ेगा, ट्यूमर बढ़ेगा कि आजू बाजू के स्ट्रक्चर 100% कहीं ना कहीं कॉम्प्रेस होंगे। तो किसको ब्लॉक कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट। अगर वो बीच में प्रेजेंट है तो वो बीच में ही ब्लड सप्लाई के ब्रांचिंग पैटर्न रोक देगा और आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर वो एंड जगह पे है तो आगे का पोर्शन अगर इस्चेमिक हो भी गया, जैसे मैंने बोला 116 चलता है, तो ऐसे पोर्शन में वो थोड़ा से बाद में भी ऑपरेट कर सकते हैं। और बेसिकली एक बार ट्यूमर फॉर्म हो गया, बेनाइन रहो या मैलिग्नेंट रहो, मैलिग्नेंट बढ़ते जाएगा, बेनाइन भी रहा तो उसकी साइज दिन ब दिन थोड़े प्रमाण में बढ़ती जाती है। तो आज नहीं तो वो अगर आज सीरियस नहीं तो बाद में चल के कभी ना कभी सीरियस हो सकता है। इसलिए वो बहुत बार बोलते हैं कि हम इसको रिसेक्ट कर डालेंगे, तो ट्यूमर निकाल देंगे। ट्यूमर निकाल सकते हैं। अच्छा, वो सर्जिकली निकलता है क्या? सर्जिकली निकालना पड़ता है अगर बहुत बड़ा है। और बेसिकली अगर मेटास्टेसिस लीवर से स्टार्ट हो गया तो वो स्प्रेड बहुत ज्यादा फास्ट होता है बॉडी, क्योंकि इसके जो सिक्रेशंस है वो बाइल में जा रहे हैं, बाइल से डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहे हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन दे रही है। तो वो मेटास्टेसिस बहुत जल्दी स्प्रेड अप होता है पूरी बॉडी में अगर लीवर की मेटास्टेसिस आ गई तो। मींस कैंसरस मेटास्टेसिस दैट इज रिलेटेड विद द कैंसरस कंडीशन ऑफ द ट्यूमर। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट स्प्लीन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज रिलेटेड विद लिम्फोसाइट्स, और ये है बेसिकली ये किसी भी सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं होता, इससे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको लेते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो बेसिकली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, रिलेटेड विद लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। उसके डायमेंशंस, वेट कैसा होता है। नॉर्मली स्प्लीन इज नॉट पल्पेबल, लिवर इज हम नॉर्मली पल्पेट कर सकते हैं। जैसे आप कभी अस्पताल में गए होंगे तो डॉक्टर्स पेट को प्रेस करके देखते हैं रिस्ट के नीचे कि कुछ हमें लग रहा है कि, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि सिंपल भूख भी नहीं लग रही, तो वो सबसे पहले राइट साइड में रिस्ट के नीचे प्रेस करके देखते हैं कि लीवर स्वेल नहीं है। तो नॉर्मली लीवर पल्पेट होता है रिस्ट के नीचे, लेकिन स्प्लीन नॉर्मली पल्पेबल नहीं होती। ये पल्पेबल कब होती है, अगर वो उसके साइज से डबल हो गई तो। इसलिए कोई कंडीशंस रही, जैसे सिंपल हिमोरेज भी रहा, सीवियर हिमोरेज रहा, तो ऐसे कंडीशन में इसकी साइज बढ़ जाती है, सॉरी साइज कम हो जाती है। पर साइज इंक्रीजेस जैसे हम फूड खा रहे हैं या कोई कंडीशन है दैट इज ल्यूकेमिया, और ये जिसमें ब्लड से रिलेटेड पोर्शंस रहते हैं, तो इसमें साइज बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, साइज डिमिनिश होते हैं। स्टार्वेशन, अगर हम खाना कम खा रहे हैं स्टार्वेशन होगा, जैसे एज बढ़ेगा तो इसकी साइज कम होती जाएंगे। तो ये
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो पैटर्न में हमें बॉडी में मिलता है। अगेन एक्सटर्नल फीचर्स, तीन बॉर्डर्स, सुपीरियर इंफीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर, दो सरफेस होते हैं, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस और द विसरल सरफेस। ये विसरल सरफेस है, यहाँ पे इंप्रेशन है, दिस इज रिलेटेड विद द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। यहाँ पे टेल ऑफ द पेनक्रियास अटैच होती है, मींस अगर ये लेफ्ट साइड, ये मेरी लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली, ये पेनक्रियास कंसीडर कर लिया, तो पेनक्रियास का टेल जो है वो यहाँ पे मिडल में अटैच होता है। इसलिए अगर कोई भी सर्जरी है, सिंपल इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी सर्जरी में पेनक्रियास स्प्लीन की करनी है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि पेनक्रियास डैमेज ना हो, क्योंकि जो कोई भी एंडोक्राइनल फंक्शन है, जैसे हमने देखा कि 80 to 90% पैनक्रियाटिक मास इट इज रिलेटेड विद द एक्सोक्राइन पोर्शन, 2% जो एंडोक्राइन में पार्टिसिपेट करता है दैट इज रिलेटेड विद द टेल। तो ये 2% बचाने के लिए ये बहुत केयरफुली ऑपरेट हम करते हैं, दैट इज द स्प्लीन। देन फंक्शंस फाइगोसाइटोसिस, हेमोपोएसिस, इम्यून एंड स्टोरेज ऑफ द आरबीसी। सभी इम्यून सिस्टम से, फाइगोसाइटोसिस मींस सेल मेम्ब्रेन होती है किसी बॉडी की, वो एंगल करता है फॉरेन बॉडी को और उसको फिर डाइजेस्ट करता है, दैट इज फाइगोसाइटोसिस। हेमोपोएसिस जनरेट करता है, इम्यून रिस्पांस है, लिम्फोसाइट्स वो प्रोड्यूस करता है, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह। स्टोरेज ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज जो है रेड ब्लड कार्पस्कल, जो हमने ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, उसमें से आरबीसी स्टोर करने का काम वो स्प्लीन में होता है। देन नेक्स्ट दैट इज मलाशय और द रेक्टम। हम सिग्मोइड कोलन तक हमने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद जो पोर्शन है दैट इज द रेक्टम। यहाँ पे जो हमने नॉर्मली देखते कि इट इज द लोअर डायलेटेड पोर्शन ऑफ द लार्ज गट डिवोइड ऑफ टीनिया कोलाई, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको बीच में बाउंड किया था, जिससे हॉस्ट्रम हुए थे, ये हमें रेक्टम में नहीं मिलते। जब रेक्टम इसी का पार्ट है, उसके बाद टीनिया कोलाई नहीं मिलते, उसके बाद सैक्युलेशंस मींस जो हॉस्ट्रम फॉर्म हुए थे दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सैक्युलेशंस, ये हमें यहाँ पे नहीं मिलते। अपेंडिक्स एपिक्लोइसी हमें यहाँ पे नहीं मिलती। अपेंडिक्स एपिक्लोइसी मींस दैट येलो स्ट्रक्चर्स फैट फील्ड बैक्स, वो हमें यहाँ पे नहीं मिलती। और मेजेंट्री इट इज द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेरिटोनियम और द अटैचमेंट्स दैट इज रिलेटेड विद, जो वहाँ पे फिक्स करने का काम करती है इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को, वो भी हमें रेक्टम में नहीं मिलती। देन कोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सिग्मोइड से स्टार्ट होता है, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ रिक्टो सिग्मोइडल जंक्शन। तो सिग्मोइड और रेक्टम का जंक्शन है। प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, तो थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा पे हमें मिलेगा, मेसोकोलॉन के पास हमें मिलेगा। कहाँ तक जाएगा, तो एनोरेक्टल जाता है, एनोरेक्टल जंक्शन, ये भी हम पाल्पेट कर सकते हैं टिप ऑफ द कॉक्सिक्स पे। दिस इज लास्ट पोर्शन, ये जो है जो एस टाइप फॉर्म कर रहा है, दिस इज सिग्मोइड कॉलम, और उसके नीचे ये जो पोर्शन है दैट इज रेक्टम, ठीक है। और ये रेक्टम के नीचे कैनल है दैट इज 3.8 सेंटीमीटर रहती है, और वो ओपन होती है एनस में। इसका भी डायमेंशन हमने दिया है, कहाँ पे क्या क्या ओपन है। यहाँ पे भी कर्वेचर्स है अगेन। तो ये कर्वेचर्स मोस्टली इंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर से सैक्रल और पेरिनियल कर्वेचर। तो ये कर्वेचर के कारण ही, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सिटिंग अरेंजमेंट, टॉयलेट वर्क, ठीक है, लैट्रिन वेस्टर्न टॉयलेट और ये इंडियन टॉयलेट, तो ये जो है सिग्मोइड कोलन और सीकम, यहाँ पे भी ये जो चीज है जो लेसर पेल्विस में एंटर हो रही है, तो यहाँ पे भी एक ये है कर्वेचर है, और नीचे यहाँ पे दो लैटरल कर्वेचर होते हैं। तो बेसिकली डेफिकेशन प्रॉपर हो, इस कारण ये कर्वेचर स्ट्रेट होना चाहिए, इसलिए जो सिटिंग पोजीशन बताई गई है, नॉर्मली हम इंडियन टॉयलेट में जो यूज करते हैं, इट इज द नॉर्मल पोजीशन फॉर द लैट्रिन और पास ऑफ मोशन, क्योंकि इस जगह पे ये जो फोल्ड नेचुरली क्रिएट होती है, ये फोल्ड स्ट्रेट हो जाती है, और जो इवैक्यूएशन होता है, एक्सक्रीशन होता है फीकल मैटर का, वो फास्ट होता है एज कम्पेयर विद अदर स्ट्रक्चर्स। इसलिए ये जो है पोजीशन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये एनाटॉमिकली फोल्डेड है नॉर्मली, पर लैट्रिन के वक्त अगर हम प्रॉपर पोजीशन में बैठे तो ये स्ट्रेट होने के बाद वो पास हो सकता है। सिग्मोइड कोलन ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अगेन यहाँ पे जो रेक्टम है ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है फिजियोलॉजिकली, सुपीरियर रेक्टम और इंफीरियर रेक्टम। मींस
फीकल मैटर अगर सुपीरियर रेक्टम में है तो हम होल्ड कर सकते हैं मोशन को। अगर हमें मोशन आई भी है तो हम होल्ड करके रखेंगे। ऐसे कंडीशन में अभी तक जो चीज हमने देखी है कि कोई भी रिट्रोग्रेड नहीं जाता, लेकिन अगर फीकल मैटर सुपीरियर रेक्टम में है तो वो रिट्रोग्रेड जाएगा सिग्मोइड कोलन में, और वो फिर सिग्मोइड कोलन में स्टोर रहेगा। ठीक है, मींस ये जो पोर्शन है स्टोर करने का काम करता है फीकल मैटर। बाकी जगह पे सीकम जो पोर्शन है वहां पे भी मैटर स्टोर्ड था, लेकिन वहां पे डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया, फिर फीकल मैटर जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट तैयार हो गया, जिसे हम फिर से फीकल मैटर कहेंगे, वो सिग्मोइड कोलन के पास स्टोर्ड हो गया। सिग्मोइड कोलन के पास से वो सुपीरियर रेक्टम में आ गया। सुपीरियर रेक्टम में आने के बाद वो ये होता है, सेंसेशन होता है हमें कि हमें लैट्रिन में जाना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जा पाते, हम होल्ड करने की जो कोशिश करते हैं। तो ये सुपीरियर रेक्टम में जब तक है तब तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आप वापस सिग्मोइड कोलन में चले जाओ, सिग्मोइड कोलन में वो स्टोर्ड रहेगा। अगर वो सुपीरियर रेक्टम से इंफीरियर रेक्टम में आ गया तो एनी हाउ हमें मोशन के लिए जाना ही पड़ता है, बिकॉज एम्ब्रियोलॉजिकली दोनों पोर्शन अलग अलग गट से तैयार होते हैं। सुपीरियर रेक्टम अलग पोर्शन से तैयार हो रहा है, इंफीरियर रेक्टम अलग से तैयार होता है, दोनों का सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम भी अलग अलग होती है। इसलिए अगर वो सुपीरियर इंफीरियर रेक्टम में आ गया तो वो 100% हमें मोशन को जाना ही पड़ता है। सेम आयुर्वेद में भी एक्सप्लेन किया है, जैसा ये पोर्शन तो एम्ब्रियोलॉजिकली हमने अभी बोला कि वो सुपीरियर रेक्टम इंफीरियर रेक्टम उसका ये पूरा अलग अलग है। पर जब आपने कोष्ठ पढ़ा होगा शायद आयुर्वेद में संहिता में, तो वहां पे गुद के दो प्रकार चरक बताए हैं, उत्तर गुद और अधर गुद। उत्तर दैट इज रिलेटेड विद सुपीरियर वन, अधर दैट इज रिलेटेड विद द इंफीरियर वन। और इसकी कमेंट्री भी चरक ने इसी हिसाब से दी है, छत्रपाणी ने, कि अगर वो उत्तर गुद में है तो अवशिष्टंति, उन्होंने बोला है कि चक्रुता पुरुषा अवशिष्टंति, और अगर वो उत्तर गुद में है, अधर गुद में है, तो वो निष्क्रमण भी। तो ये जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये छत्रपाणी ने भी यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि ये हम करते हैं। तो दिस इज द रेक्टम। बेसिकली थोड़ा सा एनाटॉमिकल चेंज होता है इन मेल्स और फीमेल्स। रेक्टम सबसे पोस्टीरियरली है, मेल्स में आगे ब्लैडर है, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, इस तरीके से प्रेजेंट होता है लेसर पेल्विस में। फीमेल में वहां पे एक और एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है, दैट इज यूटेरस, दिस इज द यूटेरस, मींस ये ब्लैडर है, उसके ऊपर यूटेरस है, दिस इज द सर्विक्स, और ये वजाइना। तो ये पोर्शन ये दोनों के बीच में प्रेजेंट है। मेल में डायरेक्टली ब्लैडर इज अटैच्ड विद द rectum, female may they having another organ, that is the uterus. Then having the folds, again temporary folds, longitudinal horizontal folds. In the last portion, that is the anal canal. This is anal canal, rectum में खत्म हो गया, this is the anal canal, ये जो portion है that is 3.8 सेंटीमीटर, और जो ओपन होता है बाद में that is into the anus. यहाँ पे जो चीज देखने जैसी है, बेसिकली सर्कुलेशन टीनिया, तो ये ऊपर से एब्सेंट है, मेजरमेंट मैंने बताया, एक्सटेंड भी नहीं। इन हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है, बेसिकली अपर वन, मिडल वन और लोअर वन। तो यहाँ पे डायग्राम में से हमें दिखेगा, दिस इज अपर पोर्शन दैट इज हैविंग द एनल कॉलम, मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, वॉल्स लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। देन द हैविंग द मिडल पोर्शन कॉल्ड एज एन पेक्टिन, ये व्हाइट कलर, समवॉट व्हाइट कलर का दिखता है एट कंपेयर्ड विद अदर्स। और लास्ट में जो होता है इज द थर्ड पोर्शन, लोअर मोस्ट पोर्शन, दैट, और ये एनल ओरिफिस। तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, जो बेसिकली हमें दिखता है इंटीरियर ऑफ द डिवाइडेड बाय फर्स्ट पिनियट लाइन और हिंटल्स लाइन, डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, दैट इज सेगमेंट अपर, इंटरमीडिएट और लोअर। मेन फंक्शन है अपर मोस्ट पोर्शन, एनल कॉलम्स, अभी हमने देखा उसको ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। जो फोल्ड्स होते हैं ड्यू टू द म्यूकोजा, वहां पे ही डिस्टेंडेड वेन्स होती है, जो आजकल हम देखते हैं पाइल्स, हम देखते हैं पाइल्स कॉपरेट हुआ, भगंदर वगैरह, जो आयुर्वेद में बोला मराठी में यूज होता है। तो इसके जो ये होते हैं ब्लड वेसल्स डायलिटेशंस होते हैं, ये अपर साइड में हमें रहते हैं, अपर साइड से नीचे आते हैं। दे हैविंग टू टाइप्स ऑफ पाइल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ये
बाहर से होते हैं, एनल कैनल के बाहर से हमें वो डायलेटेशन दिखते हैं। इंटरनल ये विद इन द एनल कैनल होती है, ठीक है। तो ये डायलेटेशन जो होती है वेरिकोज वेन्स के, उसको हम हेमोराइड्स बोलते हैं, या पाइल्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं तब वो बोला जाता है एनल वॉल्स। लाइक ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनल वॉल्स, अगेन एक्सटेंसिक एंड इंसेंट्रिक। जो लास्ट में ये जो होता है कि वॉल्स अगेन वही काम में है कि वो फिकल मैटर को बाहर ये एनल कैनल से बाहर प्रोटेक्ट करने के बाद वो वॉल्स डायलेट होंगी और फिर फिकल मैटर बाहर निकल जाएंगे। साइनसेस अगेन ग्लैंड्स, यहाँ पे सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होती है जो मॉइस्चर देती है फिकल मैसेज को ताकि वो अच्छे से पास हो पाए, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। साइनसेस हैविंग द डिप्रेशंस अबव द वॉल्स, अब वॉल्स और कॉलम के बीच में जो ओपनिंग होती है दैट इज रिलेटेड विद साइनसेस। इंटरमीडिएट एरिया और द पेक्टिन एरिया, इट्स आल्सो कॉल्ड द ट्रांसफरल जोन्स, तो मैंने दो फिगर्स के बीच में दिखाया है। बेसिकली डाइजेशन के डाइजेस्टिव सिस्टम में काम में नहीं आता, सिस्टम का पोर्शन है, इसलिए इसको मैंने थियोरेटिकली इंक्लूड किया है। लास्ट क्यूटेनस पोर्शन है, ये 8 सेंटीमीटर का होता है। स्वेटिंग ग्लैंड्स भी यहाँ पे और सेबेसिस ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। These are all structure related with the digestive system. यहाँ पे सिर्फ म्यूकोजल फोल्ड है, दिस इज द अपर पोर्शन, यहाँ पे वो कॉलम फॉर्म कर रहा है। उसके बाद जो पोर्शन आता है दैट इज द पेटिनेट पोर्शन, यहाँ पे पेटिनेट लाइन है, ये व्हाइट लाइन है, ठीक है। तो ये जो हेमोराइड्स होते हैं यहाँ पे होते हैं मिडिल पोर्शन में, म्यूकोजल फोल्ड में, वो नीचे की तरफ आते हैं। तो बेसिकली हेमोराइड्स इट्स रिलेटेड विद ब्लड, ब्लड वेसल्स का अनवांटेड डायलेटेशन होता है, इसलिए इसको दो प्रकार से, आयुर्वेद से आप क्षारसूत्र से भी होता है, या इसको डायरेक्ट हेमेरोटॉमी करते हैं, इसको कट कर देते हैं, नॉच बांध देते हैं और वो ये होता है। तो ये पोर्शन इज रिलेटेड विद एनल कैनल, दिस इज द कर्वेचर। ये पूरा एनाटॉमिकल पोर्शन हो गया। फिजियोलॉजिकल पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में हाफ 45 मिनट्स में हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सिक्रेशंस, बहुत सारे डाइजेस्टिव पोर्शन, यहाँ पे भी ऑर्गन्स बहुत बड़े थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिटेल में मेंशन किया पीपीटी में बताते वक्त, समराइज बताया, क्योंकि डायमेंशन वगैरह ऐसे हमें इतना काम का नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है कितना क्या सेंटीमीटर का है, लेयर्स क्या है वगैरह वगैरह। तो सेक्रेटरी पार्ट हम नेक्स्ट इसमें कंपाइल करेंगे। और फिर शायद हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ली है, तो वो भी शायद एनाटॉमिकल पोर्शन 2-3 ही ऑर्गन्स होंगे, एनाटॉमिकल पोर्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजिकल पोर्शन, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत ही डिटेल्ड पीपीटी थी। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर देशपांडे।